ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਐਲਡੀਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ, ਮੈਥ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫਸਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਪੀਐਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਐਲਡੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੈਥ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੀਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 100% ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਮੈਥ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2018 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਮੈਨ ਟੇਕਸ 6 hours 15 minutes ਇਨ ਵਾਕਿੰਗ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਕੁਡ ਵਾਕ ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਇਨ 7 ਘੰਟੇ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਕੱਢਣਾਗਾ ਬਾਈ ਹਿਮ ਟੂ ਰਾਈਡ ਬੈਕ ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਗਾ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਲੱਸ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। 6 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ 1/4 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ 6 ਸਹੀ 1/4 ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾਗਾ, 6 ਚੌਕਾ 24 25/4 25/4 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ 1/4 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਲੱਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਬੈਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਕੁਡ ਵਾਕ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਕ ਕਰੇ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਵੇਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਘੰਟੇ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ। 7 ਘੰਟੇ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾਗਾ 45/60 ਯਾਨੀ 15 ਤੀਆ 45, 15 ਚੌਕੇ 7 ਤੇ 3/4 ਯਾਨੀ 7 ਚੌਕ 28 ਤੇ 31/4 ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਹਿਮ ਟੂ ਰਾਈਡ ਬੈਕ ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾਗਾ 2 hour ਕੱਢਣਾਗਾ, 2 hour ਕੱਢਣਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ W + R ਪਤਾ ਹੈ 25/4, 2W ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ 31/4, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਹ 25/4 ਆ ਤੇ ਆਹ 31/4 ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2W ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ 2W ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2W ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 2W 2R, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 2 ਦੂਣੀ 4 25/2 ਆ ਗਿਆ।
25/2 आ गया राइट। हुण QW आ जिहड़ा आह ये 31/4 के बराबर है, यानी यदि थां ते मैं 31/4 लिख सकदा हाँ। इत्थे आ गया 2R। हुण 2R की बस आपां सिर्फ वैल्यू कढनी है, होर कुछ भी क्वेश्चन दे विच करन दी लोड़ नहीं सीगी। तो 25/2 माइनस 31/4 लघुत्तम लै लो 4, तो 25 दूना 50 आ जाऊगा राइट। 50 माइनस 31 राइट, तो कितना आ गया तुहाडा 19/4 आ गया। 19/4 की आ गया क्योंकि मैं उधर लै गया 2R आ गया। इसे दी वैल्यू कढनी है कि बोथ वेज दे वो राइड करदा आवे ते जावे राइट। तो 19/4 आ गया। 19/4 मैं की लिख सकदा गा, तो 4 3 सही चौगम चौके 16 के 3 बन गया। कि हुण 3/4 4 घंटे तो पूरे लग गए। 3/4 मैं मिनटां च कन्वर्ट कर लेना, तो 3/4 की हुंदा तुहाडे 15 30 45 मिनट, यानी 4 घंटे 45 मिनट लगे तो आंसर तुहाडा आ पिया। ठीक है, सो यह क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ही ਰਹਿੰਦੇ ਆ राइट। हो गया। सो मेरे हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ गए होंगे। शॉर्टकट बहुत है, पर ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ शॉर्टकट 'ਚ नहीं जाना जिथे रट्टा लगता होवे। कंसैप्ट वाइज समझना है क्वेश्चन ਨੂੰ। सो मेरे हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ चीज़ समझ गए होंगे राइट। जे ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ बैक करके दिखावां तो एक चीज़ समझो कि इत्थे W+R दिता होया 25/4 आ, अपन 2W पता बोथ वेज वॉकिंग जिक्र करदा, तो 31/4 टाइम लगता, बस 2R आप कढ़ना गा बोथ टाइम। बिल्कुल सौखा हो गया राइट। सो यह क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। क्या आपको समझ में आया राइट। सो खाने थोड़े जे खोल के मैं काली तां पढ़ा रहा क्योंकि मेरे को काम बहुत हुंदा ते बहुत सारिया क्वेरीज मेरे को आउंदियां रहिंदियां। सो प्लीज़ इस ते पूरा पूरा फोकस करना जो मैं करा रहा। कहता कि स्टूडेंट आ स्कूल जांदा गा, स्टूडेंट कहता कि स्कूल जांदा, जेकर कहता वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल जांदा ते वो 6 मिनट लेट हो जाता। ध्यान दे नाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 5/2 लिख सकदा, मैनू किलोमीटर पर स्क्वायर लिख सकदा कि नहीं, किलोमीटर पर आवर, यानी जेकर 2 दूनी 4/5/2 लिख सकदा। 5/2 किलोमीटर स्पीड के नाल जाता तो कहता वो 6 मिनट लेट हो जाता, यानी उन्होंने टाइम ज़्यादा लग जाता। बिल्कुल कहता जे वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल जाता गा तो वह 10 मिनट, तो वह 10 मिनट कहता पहला पहुँच जाता, यानी उन्होंने टाइम घट लगता। बिल्कुल ओके आ। तो कहता हुण दसो भी स्कूल की दूरी कितनी है। बहुत सिंपल दे नाल ध्यान दे नाल समझना। दूरी पूछा अपन आ डिस्टेंस पूछा। कंसैप्ट वाइज की हुंदा कि डिस्टेंस है जिहड़ा वो स्पीड इंटू टाइम हुंदा। डिस्टेंस है जिहड़ा वो स्पीड इंटू टाइम हुंदा, अपन सब नूं पता है राइट। मैं की कर दांगा स्पीड जिहड़ी उहदी हैगी आ, हुण उन्होंने कहा भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल जांदा तो 6 मिनट लेट हो जाता, यानी आपां एक्चुअल टाइम मान लैंदे आ भी उहनूं एक्चुअल टाइम आ जिहड़ा T लगता है। एक्चुअल टाइम उन्होंने मान लो T लगता किसी खास स्पीड से, उन्होंने एक्चुअल टाइम T लगता, एक्चुअल टाइम T लगता। पर जदों वो 2.5 किलोमीटर यानी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे के नाल जांदा तो उन्होंने टाइम कहता 6 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। एक्चुअल टाइम तो 6 मिनट ज़्यादा लग गए एक्चुअल टाइम तो आह की है तो स्पीड है 5/2 किलोमीटर, तो आह तो टोटल टाइम हो गया। तो स्पीड इंटू टाइम की होंगे डिस्टेंस होंगे राइट। यानी यह डिस्टेंस आ गई इन्नी दूरी तय करता, जे वो 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड नाल जाता तो 6 मिनट लेट हो जाता, यानी T+6 आ गया बराबर। फिर दूसरी कंडीशन की दी है कि जेकर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल जाता तो वह 10 मिनट पहला पहुँच जाता, तो उन्होंने 10 मिनट घट लगता 10 मिनट अर्ली, यानी T-10 10 मिनट। ठीक है, हुण 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा तो आह अपन मिनट के दिता हो, तो मैंने भी घंटे के कन्वर्ट कर लेना, तो मैं की लिख सकता 6/60 कर सकता। जेकर 6 मिनट है तो घंटे के कन्वर्ट करने वास्ते 6/60 हो गया। इस तरीके आ 10 मिनट है तो इत्थे भी बटा लाता राइट। तो बहुत सिंपल है राइट। हुण अपने को 2 इक्वेशन बन गया, तो हुण इहनूं आपां सॉल्व कर लेने कि मैं आह की आ जाऊगा 5/2 T आ गया, आह तुहाडा 6 दा आया 1/10 बन जू, तो कट्टिया जो 5 दूनी 10 1/4 आ गया। हुण सॉल्व तो करना आना चाहिए। इस तो बाद आह 3T आ गया, तो इत्थे आह 0 1/6 बन जू, 3 ना करोगे तो 3 दूनी तो 1/2 आ जाऊगा। अपने आप सॉल्व करो तो ज़्यादा वधिया रहूगा राइट। तो हम 5/2 चों मैं यानी इनू 3 नूं इधर लिया या उधर लै जाना, यानी 3T 5/2 मैं उधर लै जाना। ठीक है, तो इधर तुहाडा की आ गया भाई आह 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 राइट। यानी यह की बन गया तुहाडा भाई 4 कर दो, इत्थे 1 कर दो, इत्थे 2 कर दो, यानी यह कितना आ गया 3/4 आ गया। तो इधर आ कट के कितना आ गया देखो ध्यान दे नाल, इधर आ कट के 3 दे विचों 2.5 घटा दो तो कितना आ जाऊगा 0.5 यानी अद्धा T, तो इधर आ गया तुहाडा भाई 3/4।
राइट। 2 दूनी 4 तो टी जो आ गया भाई वो कितना आ गया 3/2 आ गया। टी है जो कितना आ गया 3/2 आ गया। बहुत सिंपल। टी है जो 3/2 आ गया। बस हुण कुछ नहीं, टी की वैल्यू ही पुट करनी है, होर कुछ नहीं करना। आप दूरी कढ़नी है कि वट इज़ द डिस्टेंस, वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्कूल। तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल अपन किवें पता लगूगा जो अपन एस तो टी पता होया। राइट। तो हुण एस अपन पता है, कोई भी चक लो, आ चक लो, भावें आ चक लो। राइट। मैं जे आह 3 किलोमीटर प्रति घंटे के नाल चलां तो टी की वैल्यू आ गई 3/2 माइनस हुण इत्थे जो 3 किलोमीटर प्रति 10 मिनट वो पहला पहुँच जाता, यानी टी माइनस टी की वैल्यू 3/2 माइनस 10 मिनट, यानी 10 मिनट में मैं की लिख सकदा 1/6 10/60। राइट। तो बस इनू कट लो भाई। तो यह कितना आ गया तुहाडा 3 गुणा यह आ गया तुहाडा 6 लघुत्तम आ गया। ठीक है। तो 2 3 9 माइनस 8 9 माइनस 1। राइट। तो 8/6 यानी 3 दूनी 6 ऊपर 8 है तो बटा कितना आ जाऊगा है 4। तो 4 तुहाडा आंसर आ गया, 4 तुहाडा आंसर आ गया। तो है क्वेश्चन बहुत सौखा। हुण मैं इहदा शॉर्टकट दसदा। ये तो चलो मैं तुहानूं कंसैप्ट वाइज समझाया कि आए तुसीं पंजाब के पेपरां वास्ते कढ सकदे हो। शॉर्टकट मैं दसूँगा वो एक बारी शॉर्टकट बहुत सोहना लगूगा पर पेपर के जाके उलझ सकते हो। राइट। पर जो कंसैप्ट वाइज करोगे तो टाइम बहुता नहीं लगूगा, सिर्फ आधा मिनट लगूगा जे तुसीं बिल्कुल प्रॉपर। मैं तो चलो बोली जाना अद्धे मिनट के सॉल्व हो सकता, आधा मिनट भी बहुत थोड़ा ही होंगे। अद्धे मिनट तो काली करोगे तो होर भी शॉर्टकट बन सकता, मैं दस दूंगा, दस के जाऊँगा भी। राइट है। सो पर एक्चुअल की है कि एक्चुअल टाइम तुसीं टी मान लो जेकर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के नाल जांदा तो 6 मिनट लेट हो जाता, यानी प्लस है टी प्लस हो जाऊगा। टी प्लस 6/60 करता आप। जे वो 3 किलोमीटर प्रति 10 मिनट तो पहला पहुँच जाता तो टी माइनस 10 करता 10/60। तो बस मुड़ के टी की वैल्यू कढ़िए, टी बराबर 3/2 आ गया। तो बस स्पीड आपको पता चाहे कोई भी ला लो, जो 5/2 नाल करोगे 5/2 नाल करोगे तो स्पीड है। तो फिर उन्होंने टाइम कितना लगता 3/2 प्लस लेट होंगे ना तो 6 मिनट लेट है तो 6/10 6/60। तो ये कितना आ गया 1/10 आ गया। राइट। ऐ कढ़ लो तो 5/2 गलबात सेम ही है। 10 लघुत्तम लोगे तो 2 5 15 आ गया, प्लस तुहाडा कितना आ गया भाई 1 आ गया। तो यह आ गया 5/2 गुणा 16/10 आ गया। तो 5 दूनी 10 चौकम चौकी 16। तो इत्थे भी 4 आंसर ही आऊगा, आंसर तुहाडा उन्ना ही आऊगा। आप टी की वैल्यू कढ़नी सी। क्या आपको समझ में आया? ठीक है ना। सो क्वेश्चन बहुत सौखा है, बस वही गल है कि आप कंसैप्ट वाइज कढ़ लांगे तो ज़्यादा वधिया रहोगे। पंजाब दे विच सेंटर एग्जाम का पेपर दिंदा हुंदा तो मैं जरूर कह देना सी भाई कि हाँ ठीक है तुसीं इहदे ते शॉर्टकट ला सकते हो, पर मेरे हिसाब दे नाल कंसैप्ट वाइज भी टाइम इन्ना नहीं लगता, चाहे तुसीं किसी भी लैवल का पेपर देना होवे। लो हुण शॉर्टकट 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे दे नाल जेकर वो जांदा तो 6 मिनट वो लेट हो जाता, 6 मिनट वो लेट हो जाता। ठीक है। जे वो भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे दे नाल जांदा गा तो वह 10 मिनट पहला पहुँच जाता है, 10 मिनट वो पहला पहुँच जाता है। ठीक है। तो जदों भी ये ऑपोजिट होण, हुण उही गल शॉर्टकट है रट्टा, जदों भी ऑपोजिट होण तो 10 मिनट तो 6 मिनट यानी इन्होंने जोड़ दो, कितना आ गया 16 मिनट आ गया। 16 मिनट आ गया तो 16 बटा मिनट तो घंटा के कन्वर्ट करना 16/60 आ गया, यानी चौकम चौकी 16 तो 4 15, यानी ये कितना आ गया तुहाडा 4/15 आ गया, 4/15 आ गया। राइट है। तो इन्हों के डिफरेंस कढ़ लो, इन्हों के डिफरेंस कितना गा भला 1/2 का, आह 2.5 है तो आह 3, तिना के 2.5 तो 1/2 आ जाऊगा, 1/2 आ जाऊगा। जदों तुसीं ये कीता, हुण ध्यान दे नाल एक चीज़ सुननी है, जदों 1/2 करोगे 1/2 हुण आह देखो तुहाडा कितना बनता है 3 3 ते 1/2 सॉरी 3 ते 2.5 3 ते 2.5 1/2 बनता। हुण ध्यान दे नाल एक चीज़ देखो, जदों मैं इत्थे 1/2 नाल डिफरेंस करूँगा 1/2 दे नाल डिफरेंस करूँगा तो यह कितना आ जाऊगा तुहाडा 2 दूनी 4 2/15 2/15। राइट। हुण यह 2/15 आ गया। राइट। इनू तुहानू मल्टीप्लाई करनी पऊगी भाई, यह करनी पऊगी तुहानू 30 दे नाल। राइट। 30 का मतलब की है, हुण 30 का मतलब की है क्योंकि आह अद्धे घंटे का डिफरेंस पैंदा इन्हां दे, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दोनों के अद्धे घंटे का डिफरेंस पैंदा। जे आप किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब की 3 किलोमीटर की दूरी तय करता। ठीक है। 2.5 किलोमीटर पर आवर का मतलब की है कि पर आवर के 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता। पर जे अपन उल्ट करके देखिए जिवें वर्क अपॉन टाइम है, जो वर्क टाइम की एफिशिएंसी के उल्ट होंदा गा, तो जे अपन उल्ट करके देखिए तो अद्धा घंटा का मतलब 30 तो 30 के नाल जो मैं इनू गुणा करूँगा तो यह 2 दूनी 4 आ जाऊगा, पर यह वेरी वेरी तक्का। ठीक है। ये शॉर्टकट है। हुण इत्थे तो मैनूं पता तुहानूं नहीं समझ लगूगा,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ कहना कि बिल्कुल कंसैप्ट वाइज करोगे, कंसैप्ट वाइज चंगे रहोगे, राइट। एक तो आ भी शॉर्टकट है, तो नहीं शॉर्टकट ये भी बन सकता है कि 2 तीया 6, 5 तीए 15, राइट। 15 बन गया, 3 दा आया तो ये 45 मिनट आ गया। 45 बटा 60 करोगे तो ये कितना आ जाऊगा 15 तीया 3 बटा 4 आ गया, 3 बटा 4 आ गया। 3 बटा 4 आ गया तो तुम ये डिफरेंस देखोगे तो 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 है तो इनू जो 1 बटा 2 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो 2 उपर चला जाऊगा, 3 बटा 2 है तो 3 बटा 2 टी की वैल्यू आ गई। जो 3 बटा 2 टी की वैल्यू आ गई, गल्लां बातां फिर सेम है। तो शॉर्टकट तो बहुत बन सकते, शॉर्टकट तो तुहानूं मैं इत्थे 10 गिना दूँ, पर उन्हां शॉर्टकटां का कोई फायदा नहीं। कंसैप्ट करोगे आपां नूं यह ना वहम हुंदा कि शॉर्टकट जी 15 सकिंट 10 सकिंट दे विच कढ दांगे, तुसीं अद्धा मिनट ले लो पर सही कढ लो। कंसैप्ट तुहानूं पता हो तो अद्धे मिनट के क्वेश्चन तां भी निकल जाना। शॉर्टकट बहुत रेयर काम आउंदे आ, बहुत रेयर काम आउंदे आ। सो इस करके कहना शॉर्टकट तो तुहानूं मैं हुणे 2 दस के हटिया, पर वही गल भी गारंटी है जिन्होंने ने तो चलो पहले पढ़ रखे होंगे, क्योंकि आसे पासे यूट्यूबर बहुत है, ठीक है। यूट्यूब पर तुहानूं बहुत सारे टीचर है एवें शॉर्टकट कराउंदे होणगे। आह 3 बटे 4 वाला भी समझ लग गया हो कईयां नूं आ भी समझ लग गया होगा, पर कईयां नूं नहीं समझ लग गया होना, पर कंसैप्ट सारिआं नूं समझ लग गया हो। सो जाओ उत्थे ही जिहड़ा एक्चुअल च बेस बनया हुआ बेस कंसैप्ट है, राइट। सो वो भी अद्धा मिनट ही लगना है। चलो खैर, the time taken by 4 men, the time taken by 4 men to complete a job is double the time taken by 5 children to complete the same job। ध्यान दे नाल कहंदा भाई, कहंदा 4 बंदियां नूं द टाइम टेकन बाय 4 मैन, उन्होंने कंप्लीट करने वास्ते कोई भी काम डबल टाइम लगता गा, डबल टाइम लगता गा 5 बॉय के कंपैरिजन, 5 चिल्ड्रन के कंपैरिजन, 5C 5 चिल्ड्रन के कंपैरेटिव सेम जॉब। यानी जेकर मान लो इन्हों 1 दिन लगता तो इन्हों 2 दिन लगते होंगे। की कहता 4 मैन नूं कंप्लीट करने वास्ते जॉब डबल द टाइम टेकन बाय 5 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द सेम जॉब। यानी जेकर 5 चिल्ड्रन नूं 1 दिन लगता तो इन्हों 2 दिन लगते हैं, मैं लिखता राइट। तो इन्हों की एफिशिएंसी कड्डो कितनी आ जाऊगी, तो यह आ गई भाई तुहाडी आह 4 दूनी 8 बन गया। मैन ते चिल्ड्रन की जी एफिशिएंसी आ गई वो 5:8 आ गई, राइट। आ सी नूं चक इधर लियाओ तो आह 8 उधर चले जाओगे तो 5/8 आ गई, 5:8 मैन ते चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आ गई, बिल्कुल ओके। कहता जी ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वूमैन, यानी मैन ते वूमैन की एफिशिएंसी दे रखी है, मैन ते वूमैन की एफिशिएंसी दे रखी है। कहता ईच मैन हरेक बंदा कहता ट्वाइस है, दुगना फास्ट है वूमैन तो, यानी जेकर मैन 2 है तो फिर यदा मतलब वूमैन 1 है। जेकर ट्वाइस फास्ट का मतलब की है कि दुगना काम कर दिया, हरेक बंदा हरेक वूमैन नालों दुगना काम करता ट्वाइस एज फास्ट, यानी जेकर वूमैन 1 कर दी तो बंदा 2 कर देता, राइट हो गया। हुण कहंदा भी दसो हाउ लॉन्ग विल 12 बंदे 10 चिल्ड्रन ते 8 वूमैन नूं कंप्लीट काम करने वास्ते टाइम लगूगा कितना, राइट। 20 दिनों के, यानी कि जो भी है क्वेश्चन पूछा कोई चक्कर वाली गल नहीं। सब तो पहला फोकस करना मैन चिल्ड्रन ते मैन वूमैन की एफिशिएंसी ते, यानी इत्थों पहले आप तिन्ना की एफिशिएंसी कढ़ लें। हुण तिन्ना की एफिशिएंसी ये उवें ही है कि आपां नूं A अनुपात B पता है, B अनुपात C पता है, A अनुपात B अनुपात C कढ़ना, गल्लां बातां सेम ही है, राइट। यानी आपां मैन वूमैन ते चिल्ड्रन की जिहड़ी एफिशिएंसी कढ़ लें। सब तो पहला अपना टारगेट ये है, राइट। चलो तो हुण जदों इत्थे टारगेट आपां ये कीता तां इहनूं कढ़ लें भाई, तो यह आ गया तुहाडा 5:8। मैं की करदा इन्हां तिन्नां दी रेशो कढ़ लेना। हुण 8:5 इहनूं लिख लेना, ठीक है। तो इहनूं लिख लेना मैं 2:1, तो इत्थे 2 कर दो, इत्थे 5 कर दो, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो यह कितना आ गया 16:10:5 आ गया, 16:10:5 आ गया। पर यह एफिशिएंसी किहदी आई है, इत्थे आपां चिल्ड्रन ते मैन नूं उल्ट करता, रेशो तो कढ़नी आउंदी होना, चिल्ड्रन ते मैन नूं उल्ट करता, तो यह आ गई तुहाडी चिल्ड्रन मैन ते वूमैन की रेशो आ गई, चिल्ड्रन मैन वूमैन की रेशो आ गई। जिमें मर्जी कढ़ लो, तो तुसीं मैन वूमैन चिल्ड्रन की भी कढ़ सकते हो, गल्लां बातां सेम ही, रेशो उल्टा दो, ठीक है ना। ये तो हुण तुहानूं पता ही होना रेशो तो कढ़नी आउंदी है भाई। इत्थे मैनूं रिवीजन कराउंदे बड़ा डर लगता हुंदा भी कमेंट इहो जिहे ना आ जाण भी सर जी सानूं कुछ नहीं समझ लगी, क्योंकि काफ़ी जाने सिर्फ इन्हां वीडियो नूं देख के जज कर लग जाणगे, राइट। इत्थे तो मैं बिल्कुल उवें नहीं करा सकदा, तो जस्ट रिवीजन है, ठीक है। सो आ रेशो तो कढ़नी आउंदी हो, रेशो तो मैं बहुत वास्ट करा रखे, राइट। जां ऐ कर लो भी इत्थे मैन 5 है, इत्थे मैन 2 है,
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ 2 5 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ 2 8 16 ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਲਡਰਨ ਤੁਹਾਡਾ, 2 8 16। ਇੱਥੇ ਮੈਨ 5 ਦੂਣੀ 10 ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਲਿਖਤਾ, 5 1 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਨ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਚਿਲਡਰਨ 16 ਗਾ, ਚਿਲਡਰਨ 16 ਗਾ, ਮੈਨ 10 ਹੈ, ਮੈਨ 10 ਹੈ, ਤੇ ਵੂਮੈਨ 5 ਹੈ, ਤੇ ਵੂਮੈਨ 5 ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5:8 ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਨ ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 2:1 ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10:16:5 ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ 12 ਬੰਦੇ 10 ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ 8 ਵੂਮੈਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ ਟੇਕ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਜੌਬ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਜੌਬ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਈਲਡ ਵੁੱਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਜੌਬ ਇਨ 20 ਡੇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 12 ਬੰਦੇ, ਹੁਣ 12 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 10 ਹੈ, ਤਾਂ 12 ਗੁਣਾ 10 ਪਲੱਸ 10 ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਗੁਣਾ 16, ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ 16 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। 8 ਵੂਮੈਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5, ਰਾਈਟ। 12 ਗੁਣਾ 10 ਪਲੱਸ 10 ਗੁਣਾ 16 ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਗੁਣਾ 5 ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਣਾ ਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 16, ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਤਾਂ 16, 1 ਗੁਣਾ 16 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 16, ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੋ ਗੁਣਾ 20। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਹ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 120, ਆਹ ਆ ਗਿਆ 160, ਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ 16 ਗੁਣਾ 20 ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਆਹ ਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 160 ਤੇ 40 200 ਤੇ 320 ਬਣ ਗਿਆ। ਡੀ ਗੁਣਾ 320 ਬਰਾਬਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 320 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, 320 ਤੇ 320 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 1 ਡੇ ਆਨਸਰ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ 4 ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ 'ਚ 5 ਚਿਲਡਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਜੇ ਆਹ 1 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5:8 ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨ ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਦੁੱਗਣਾ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਵੂਮੈਨ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ 16, ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਸੀਗੀ 5, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 10, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ A ਐਂਡ B ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੇ B ਕਹਿੰਦਾ A 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, B ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨੀਏ 12 ਤੇ 18 ਤੇ 36 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੂਗਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ A begins to do the work and they work alternatively one at a time for 1 day each। यानी कि A काम स्टार्ट करता तो उस तो बाद अल्टरनेट डे काम करते, यानी A ने पहले दिन काम किया, B ने दूसरे दिन, A ने तीसरे दिन, फिर B ने, फिर A ने, फिर B ने, फिर A ने, ठीक है। इस तरीके तो एक दिन जेकर A काम करूगा तो कितना काम कर दूगा, एक दिन के 3 काम करता। B जेकर एक दिन काम करूगा तो B कितना काम करता 2।
ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ 5 ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ 5 ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ 3 ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 2 ਕੰਮ ਕਰਤਾ। 5 ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 5 ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ A ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ B ਕਰੂਗਾ, ਯਾਨੀ 5 ਵਰਕ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ 5-5 ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 36 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ 36 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, 5-5 ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਯਾਨੀ 5-5 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ 35 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 35 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ 5 ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ 7 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 35 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 35 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ 36 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ 7 ਸਟੈਪ ਹੈ, 7 ਸਟੈਪ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ, 5 ਵਰਕ ਫਿਰ 5 ਵਰਕ ਫਿਰ 5 ਵਰਕ ਫਿਰ 5 ਵਰਕ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ 5-5 ਕਰਦੇ ਹੋ 7 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 7 ਸਟੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 35 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 35 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 5 7 35, ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 35 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 36 ਹੈ। ਤਾਂ 36 'ਚੋਂ 35 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਪਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ 14 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ A ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ B ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਲੀ ਹੈ, ਜੋਟਾ ਦੂਸਰਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ, ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ, ਫਿਰ 11ਵਾਂ 13ਵਾਂ 15ਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ 3 ਕੰਮ, A ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ 3, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਰ ਦੂਗਾ, 1/3 'ਚ, 1/3 'ਚ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ 3 ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ 3 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/3 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 14 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ 1/3 ਲੱਗੂਗਾ। 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, 14 ਸੀ 1/3। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ आंसर है, 14 ਸੀ 1/3। समझ में आया क्या, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन बहुत डीप मेरे कराए हुए ने, ठीक है भाई। सो जिन्होंने किए हुए ने वो आराम नाल कढ़ सकते हैं। 14 ਸੀ 1/3 आंसर आ गया। समझ में आया क्या। नैक्सट क्वेश्चन भाई, हुण मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो पहले आए हुए हैं, वो तो बहुत सौखे आ। अपना काम बस ये है, देखो सीधी जी गल है, PSPCL की गल करदा मैं। PSPCL है जिहड़ा तुहाडा ओह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ 10 लैवल है। सब तो सौखा, फिर औखा, 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 फिर, ठीक है। PSPCL है जिहड़ा तुहाडा इत्थे लाई करदा है चौथे ते 5वीं पौड़ी दे विच। ते आह जिहड़े क्वेश्चन है ये तीसरी पौड़ी वाले आ, ठीक है। ये तीसरी पौड़ी के क्वेश्चन है, राइट। यानी ये इत्थे कलाई करते हैं। तो तुसीं प्रिपेयर होकर जाना 10 तक, ताकि जे औखा आ गए तां भी तुहानूं कुछ ना लगे, सौखा आ गए तो तुहानूं ऐ लगूगा भी क्या बात है, बहुत सौखा गा, राइट। सो इत्थों तो प्रिपेयर होना भाई 10वें लैवल तक। जिहड़ा मेरा मैथ कंप्लीट करवाया होया वो 10वें लैवल तक कराया होवे, कि इस तो औखा पंजाब दे विच तां नहीं आउंदा, राइट। आह जिहड़ा पोर्शन तुहाडा PSPCL है, जे मैं पिछला पेपर या पिछले पेपरां दी गल करां, वो तुहाडा चौथे 5वें तक लाई करदा बस। तो चौथा 5वां 10वें के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ऐ कह लो भी 10वां जेकर तुसीं कर लिया तो चौथा 5वां तुहानूं पहले के बराबर लगूगा, राइट। हुण जे तुसीं मान लो चौथे 5वें की प्रैपरेशन छड्ड के 3 लैवल तक प्रैपरेशन करके जाने हो तो तुहानूं पेपर दे विच जाके लगूगा भी हाँ पढ़िया चो तां आया सी पर होया नहीं, क्योंकि चौथा 5वां लगूगा तो इन्ना अर गई कि जिहड़ा तुसीं करके गए हो पर होना नहीं, क्योंकि वो लैवल कीता नहीं होना। जे तुसीं चौथा 5वां लैवल तो उत्ते मान लो 6वां कर गए, 6 तक कर गए, मान लो 6 लैवल तक कर गए, तो तुहानूं आउंदा भी होगा पर निकलूगा नहीं, क्योंकि उवें प्रैक्टिस नहीं होनी, उन्ना सौखा भी नहीं लगना, क्योंकि तुसीं मैक्सीमम लैवल 6 करके गए हो। तो 5वें लैवल का क्वेश्चन आ गया, तुहानूं आउंदा होऊ, जिवें तुसीं आम तौर पर देखदे हो कि भी आउंदा है पर निकल नहीं रहा,
समझे ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਆਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਮਲਾਈ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆਉਂਦਾ। 20 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਛੱਡਿਆ 19 ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਹੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਟੂ ਵਰਕਰ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗੇਜਡ ਟੂ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ, ਏ ਵਰਕਿੰਗ ਅਲੋਨ ਵੁੱਡ ਟੇਕ 8 hours more to complete the work, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਪਟਵਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, 8 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ A + B ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ B ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ यानी 4.5 घंटे, यानी 4.5 घंटे में की लिख सकता 9/2, 9/2 घंटे लग जाते हैं उन्होंने जेकर आप कंपैरिजन करिए दोनों का इकट्ठे नाल। क्वेश्चन की टाइप नूं समझना गा, कल्ली कल्ली टाइप मैं करवाई हुई है तो कल्ली कल्ली टाइप मैं करवाऊँगा भी, राइट है। ए नूं 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं जे वो कंपैरिजन करता A + B दे नाल। मान लो A + B नूं, मान लो A + B नूं 30 घंटे लगते हैं, X घंटे लगते हैं। मान लो A + B नूं X घंटे लगते तो इनू X + 8 लगते होंगे, राइट। जे A + B नूं X घंटे लगते तो इनू X + 9/2 लगते, 4.5 घंटे। ये जो टाइप आ गई तो तुहानूं पुछा के जाऊगा कि द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टूगैदर, तो दोनों नूं इकट्ठियां च कितना टाइम लगता गा, आ पुछा हो तुहानूं, राइट। तो इहदा आंसर इक्को ही है की भला 8 घंटे लगते A नूं ज़्यादा तो B नूं लगते हैं 9/2 घंटे ज़्यादा। रूट कर दो दोनों नूं गुणा करके, 4 9 36, 36 का रूट होंदा गा तुहाडा कितना होंदा 6, तो दोनों नूं लगते भाई 6 घंटे, 6 घंटे आंसर आ गया। हुण की इस क्वेश्चन दे विच कोई सीगा, आ लिखण दी तां लोड़ ही नहीं सी, 5 या 10 सेकंड। पर प्रॉब्लम यही कि टाइपां की तुसीं ये कीतियां होईयां जां तुसीं जिथे पढ़ रहे हो की उन्होंने करा रखी है, बस आही क्वेश्चन है। तो करवाउणियां बहुत सौखियां, कोई बाहली वड्डी गल नहीं है। ध्यान दे नाल क्वेश्चन तुसीं जदों पढ़िया नाल दे नाल की करना कि A and B आर अंगेज्ड टू पीस ऑफ वर्क, ठीक है जी। कहता A जेकर वर्किंग अलोन है तो उन्होंने वुड टेक 8 hours मोर टू कंप्लीट द वर्क, 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं कंप्लीट करने वास्ते। दैट कहता वैन वर्क टूगैदर, जदों आप टूगैदर के नाल कंपैरिजन करते हैं। B कहता वर्कड अलोन तो उन्होंने 4.5 घंटे ज़्यादा लगते, मोर दैन काहदे नाल वैन वर्किंग टूगैदर, जदों इकट्ठे काम करते तो बस फिर उन्होंने लगते भाई ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 8 घंटे ज़्यादा, ਉਹਨੂੰ 4.5 घंटे यानी 9/2, 2 चौके 8 4 9 36, 36 का रूट कितना होंदा 6, तो दोनों इकट्ठिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ कितना टाइम लगूगा 6 घंटे लगणगे। 6 घंटे आंसर आ गया, 6 घंटे आंसर आ गया। इन्ने ची क्वेश्चन सॉल्व करना सी। क्या आपको बात समझ में आई ना? यही क्वेश्चन है भाई। हुण क्वेश्चन आप वो करते ਜਿਹੜੇ आए हुए ने, देखो किन्ने सौखे सौखे क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ आए हुए ने, ठीक है। सो आ क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 मिनट मैं सैल चेंज कर ला माइक दे, फिर बाद में आवाज़ बंद हो जाती है। करो भाई सॉल्व इनू। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, आ रही है, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ, देखो हम सारे क्वेश्चन आप वही करांगे। कहता शशि कहता 12% आपकी इनकम चो सेव करता, ठीक है। इफ हर इनकम कहता वो 25% जेकर इनक्रीज हो जाए, गल खत्म है कि जेकर मान लो 100 रुपया वो तनख्वाह गई, या 100% मान लो 100 रुपया भी मान सकते हो, ठीक है। जाओ मान लो भी 100% वो तनख्वाह गई तो 12% कहता सेव कर लेंगे, यानी 100 के जेकर 12% का मतलब 12 ही होगा, तो यह मतलब वो सेविंग है जी कि है भाई 12 की, राइट हो गया, ओके।
कहना जेकर उसकी तनख्वाह इनक्रीज हो जाए 25%, यानी 100 का 25% 25 ही होगा, यानी 25 इनक्रीज होगी, यानी उसकी तनख्वाह होगी 125। नाउ कहना शी नाउ सेव 15% ऑफ हर इनकम, यानी 125 का हम 15% है जोड़ा बचाती है, यानी 15/100, 15/100, यानी कि 120 ना करोगे तो 300, 15 5 75, यानी 375 आ जाऊगा। यानी कहने का मतलब हुण वो जो सेव करती है वो 125 का 15% करती है, यानी कितना सेव करती है भाई वो, ठीक है। तो कितना सेव करती, 37.5 आ जाऊगा, 125 हाँ 37.5, यानी हुण वो 37.5 आ जो सेव करती है रुपया 125 चों। पहला 100% आप मान लिया तो वो 12% सेव कर दी, बिल्कुल ओके है। इस तो बाद तनख्वाह बढ़ गई 25% तो 125 हो गई, 125 का 15, मैं की किया 120 नूं करता कि गुणा पड़ा 15 के नाल, यानी 12 नूं 15 12 नूं करोगे तुसी सॉरी 120 नूं जो 15 के नाल करोगे तो कितना आ जाऊगा तुहाडा, मैं की कर गया है ओके हाँ ठीक है ठीक है। जो 120 नूं तुसी 15 नाल करोगे तो ज़्यादा आउंदा, 1 मिनट मैं 12 5 60 कर गया, कोई चक्कर नहीं। तो 125 का 15% कढ़ना है राइट, तो 12 15 होंदा 1800, ठीक है। जो 12 नूं तुसी 15 करोगे तो 180 आऊगा, नाल 0 है तो 1800 आ गया, 15 5 75 आ गया, 75 जोड़ो तो 18.75 आऊगा, ठीक है ठीक है। तो यह आ गया तुहाडा 1875, यानी 18.75 आ गया, यानी हुण वो सेव कर रही है 1875, यानी वटा 100 तो 18.75 आ गया। जे वो पहला करती सी 12, हुण वो करती है 18.75, तो पूछा कि देन वट परसेंटेज विल हर एक्चुअल सेविंग इनक्रीज, तो कितनी इनक्रीज हुई है, 6.75 इनक्रीज हुई है, तो 6.75 इनक्रीज हुई है। पर आपां कंपैरिजन जो कर लिया तो इस तरीके दे नाल कंपैरिजन करना बहुत सौखा हो जाना। तुसीं वैसे भी कर सकते हो, जे करना चाहोगे वैसे भी कर सकते हो, पर यह बिल्कुल सौखा तरीका है। राइट हो गया या नहीं, तो 6.75 आंसर आ गया, समझ लग गई ना। हुण एक होर तरीका समझो, की हो गया भाई, देखो ध्यान दे नाल 100% है राइट, 100% तो सेव कर लेंगे जी 12, ठीक है, यानी वो 12 रुपये बचाती है। तनख्वाह बढ़ गई 25% होगी राइट, 25% होगी। हुण तुसीं काफ़ी जन ने करता हुए में कि 100 के तो जेकर 12 बचाती है तो यह मतलब 88 खर्चती है, यदा मतलब 88 खर्चती है। हुण उसकी तनख्वाह होगी 25% इनक्रीज, यानी कि आप करता जी 125 राइट। जे आप 125 करता तो 125 का 15% की बजाय काफ़ी जने ने करता हो कि 15% तो सेव कर दिया हुण, तो यह मतलब की आ जाऊगा 15% का मतलब 85% खर्चती है। ये बहुत लॉन्ग मैथड है, ठीक है, यानी तुसी एक्सपेंडिचर कढ़ के उसका सेविंग अमाउंट कढ़ोगे, वो बड़ा लंबा मैथड है। तो आ चीज़ अवॉइड कर दो, इन्नी चीज़ ही दसनी सी, सीधा ही है बस 125 गुणा 15/100। चलो उमें भी नहीं करना तो कट भी सकते हो कि 25 चौका 100, 25 5, ठीक है, 75/4 आ जाऊगा। जे उमें नहीं करना चलो शॉर्टकट, 75/4 का मतलब की है कि 4 1 4, 3 बच गया, 4 8 32, फिर 4 7 28, एवें भी कढ़ सकते हो, ठीक है ना। जे मान लो मैं तो की कीता गा 120 है तो 15 180 1800 1875 15 बजे, तो मैं उमें करता जे मैंटल कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो 18.75 हो गया, तो हुण 18.75 बचाउंदी है, तो यानी वो जिहड़ा है देन वट परसेंट विल हर एक्चुअल सेविंग इनक्रीज, तो कितना बढ़ गया सी 12 तो कितना हो गया 6.75। क्या आपको समझ में आया, ठीक है ना। तुसीं इस तरीके नाल भी इहनूं सॉल्व कर सकते सी जे करना चाहुंदे हो, ठीक हो गया या नहीं। एक मिनट, मैसेज पे मैसेज, ठीक हो गया भाई। तो ये चीज़ होगी तुहाडी सॉल्व 6.75, ठीक हो गया। तो आपां नूं इत्थे पुछया कि किन्ने परसेंटेज आ जिहड़ा विल हर एक्चुअल सेविंग इनक्रीजेज, यानी एक्चुअल सेविंग का किन्ने परसेंट इनक्रीज हो गया, वो तो कढ़ ही लओगे हुण, ठीक है ना। सो एक्चुअल सेविंग का जिहड़ा कढ़ना कि 6.75 बढ़ गया, तो 6.75 गुणा 100, एक्चुअल सेविंग उसकी कितनी सी 12,
ठीक है। तो बस इनू कढ़ लो भाई, ठीक है। कितना आ जाऊगा देख लो, 12 5 5 50 50 55 55 के नेड़े तेड़े आऊगा। ऑप्शन देख लो की है। अच्छा 6.75 भी पिया, 6.75 भी पिया, 6.75 ना आंसर ला दो कितने यार, 56.25, ठीक है। 150 तो उत्ते 56.25 आंसर आ जाऊगा। इन्ना समझ लग गया हूँ। एक मिनट यार, कॉल फिर आ गई। ठीक है। बस होर कुछ नहीं, बस आपको ये पूछा भी दैन वट परसेंट विल हर एक्चुअल सेविंग इनक्रीज, यानी एक्चुअल सेविंग जी हैगी है 12, तो जी हूँ वो सेविंग है यानी 18 पॉइंट जो भी आप कढ़िया 75, ये किन्ने परसेंट इनक्रीज हुई है, ठीक है ना। 6.75 भी ऑप्शन हैगा, तो आप गलती ला सकते हैं। 6.75 तो वैसे ही आया भी पहले 12 बचाता सी, हूँ 18.75 बचाता, तो 6.75 ज़्यादा बचाता। आप तो परसेंटेज कढ़ना वट परसेंटेज, तो 6.75 गुणा 100 बटे 12, 56.25 आंसर आ जाएगा। आप परसेंटेज कढ़ना ना, बस ये क्वेश्चन तुहाडा आया होया। चलो क्वेश्चन कहा कहता एक परसन है, 2 आर्टिकल है जो खरीदा भाई, बॉट 2 आर्टिकल्स पी एंड क्यू, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी वाज 75% ऑफ क्यू, यानी कि अपन कॉस्ट प्राइस की रेशो दे रखी है पी अनुपात क्यू। जी कॉस्ट प्राइस पी की वो कहता 75% है ऑफ क्यू, यानी जे 100 क्यू आ जी 100 आ तो 75% होगी, ठीक है। तो यानी 25 30 तो 25 चौका, 3:4 आ गया, राइट हो गया। इस तो बाद कहता भी ही सोल्ड एट लॉस ऑफ 5%, ही सोल्ड पी एट लॉस ऑफ 5%। हूँ 3:4 है तो मैं 300 मान लेना सौखे करके, इनू मैं 400 मान लेना सौखा करने पिछे, राइट। तो पी रेशो क्यू अपन दी हुई कॉस्ट प्राइस कहता यदि 75% ऑफ क्यू है, यानी जिस क्यू 100 है तो 75% हो गया, कट कटा के 3:4 आ गया। मैं सौखे करने वास्ते 300 मान लिया, 400 मान लिया। हूँ कहता जोड़ा पी है उन्होंने कहता 5% लॉस से बेचता, यानी 300 जेकर मैं 5% लॉस से बेचूंगा तो लॉस का मतलब की है 15 रुपये घट च बेचता, यानी उन्होंने मैं बेचता होगा यदा मतलब 285 यदा मतलब उन्होंने मैं बेचता होगा 285 यानी 15 रुपये मैं घट च बेचता, लॉस हो गया, राइट है। तो क्यों कहता 15% प्रॉफिट च बेचता, यानी 15% 400 का 15% की होगा 15 चौके 60, यानी 60 रुपये प्रॉफिट च बेचता, 60 रुपये प्रॉफिट च बेचता, यानी किन्ने च बेचता 460 च बेचता, राइट हो गया। दस गॉट 745 इन ऑल द सैलिंग प्राइस ऑफ पी एंड क्यू, कहता दोनों जोड़ के, दोनों के सैलिंग प्राइस में जोड़ के 745 रुपये बन गया। देख लें तो 285 तो 460, 285 तो 460 कितना बनता है देख लो, 745 ही बनता। यदा मतलब जी आप अमाउंट कुदरती देखी आ वो 300 तो 400 ही है, कुदरती आ गया, ठीक है ना। जे मान लो 745 ना होंदा, 745 का दुगना दे सकता सी, 745 का तिगना दे सकता सी, मल्टीपल ही दिता कुछ ना कुछ, तो इतने कुदरती 745 ही आ गया, यानी दोनों की सैलिंग प्राइस में जोड़ के 745 ही आ गया। तो आ 745 के बराबर ही है, कुदरती आ गया। तो जो आह 745 के बराबर है तो फिर 300 भी ठीक है, 400 भी ठीक है। अपन पूछा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू वाज, तो क्यू का कॉस्ट प्राइस की है, क्यू का कॉस्ट प्राइस भी कितना है 400 है, क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना 400। जे अपन सैलिंग प्राइस पूछा होंगे क्यू का तो 460 आ जाता, सैलिंग प्राइस अपन पूछा होंगे पी का तो 285 आ जाता, कॉस्ट प्राइस पी का पूछा होंगे तो 300 आ जाता, कुदरती ही बराबर आ गया सारा कुछ, ठीक है ना। सो ये बिल्कुल सौखा मैथड है। जे हुण तुसीं होर मैथड ना करना चाहते तो होर मैथड ना कर लो, किवें ध्यान दे नाल देखो। इस क्लास सच्ची कहना कि उही आयो जिन्हों ने पहला पढ़ रखा भाई, रिवीजन, ओनली रिवीजन, राइट। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ पी ते क्यू कहता 75% है तो यदि 100%, मैं इन्हू 75 तो 100 ही रख देना, कटदा नहीं, मान लो, ठीक है। आ मान लो 75 रुपये आ 100 रुपये है, कहता वह भाई पी नू लॉस से बेच देता, यानी 5% लॉस से बेचता, 5% लॉस से बेचता, यानी 5% 75 का की होगा तो 25 30 75 25 चौका 100, 25 बटा 15/4 आ गया, ठीक है। 15/4 यानी 15/4 लॉस से बेचता, 15/4 का मतलब की होगा 4 3 12
4 7 28 3.75 ਹੁਣ देखो कितना ज़्यादा औखा करन दी कोई फायदा नहीं ये चीज़ां करन दा पर फिर भी मैं करके दिखाऊंगा ताकि पता लग गए कि 3.75 आ गए यानी उन्हें 3.75 लॉस से बेचता यानी जेकर वो पहला 75 का बेचता सी 75 का कॉस्ट प्राइस सी तो हम 3.75 यानी कितना आ गया 71.25 आ जाऊगा यानी आ की आ गया सैलिंग प्राइस आ गया 3.75 लॉस च बेचता 75 चो 3.75 कट लो 75 चो मैं 4 कड्ढे तो कितना रह जूगा 71 रह जूगा तो 0.25 होर ला दो ठीक है चलो 71.25 हुण आ जाओ क्यू ते कहता क्यू आ जो उन्होंने 15% गेन से बेचता यानी 100 का 15% तो सीधा ही सौखा ही है 15% गेन से यानी 15 रुपये ज़्यादा बेचा होगा यानी 115 बेचा होगा दोनों का कहता सैलिंग प्राइस मिला के 745 बनता हुण इत्थे दोनों का सैलिंग प्राइस मिला के कितना बनता 115 तो 71.25 कितना बन गया है 5 ते 6 186.25 बन गया देखो कितना ज़्यादा टेढ़ा काम है ये करने की लोड़ ही नहीं फायदा नहीं कोई उवें सी जिवें पहलां कीता मैं तो यह कितना आ गया 186.25 आ गया यानी जिहड़ा यह 186.25 है यानी जिहड़ा यह 186.25 है यह किहदे बराबर है 745 के बराबर है तो आपां नूं पुछया की है आपां नूं पुछया की है आपां नूं पुछया उन्होंने कहंदा क्यों दा कॉस्ट प्राइस कढना क्यों दा कॉस्ट प्राइस आपां इत्थे कितना मन्निया 100 मन्निया यानी आपां 100 की वैल्यू कढनी है यानी आपां 100 की वैल्यू कढनी है 100 रुपये मन्निया ना आपां क्यों दा तो 100 रुपये आप कढ़ना यानी 100 की वैल्यू कढ़ लो तो 745 बटा 186.25 मैं उपर 100 लाई जाना तो गुणा 100 आह तो इन्हू सॉल्व करना होर कख नहीं करना सॉल्व कर लो भाई सॉल्व करो तो 25 चौका 100 25 25 छीका 150 25 7 175 25 7 175 तो कितना बच गया 112 12 बच गया राइट तो कितना बन जूगा ये 112 हो जूगा तो 25 चौका 100 आ जूगा फिर 12 बच गया तो फिर 25 5 745 आ गया 745 ना कट्टा जाना 100 चौका कितना आजू 400 ही आंसर आ गया देखो पर क्या फायदा इन्ना ज़्यादा गूढ़ा करना इन्ना ज़्यादा आपदे आप औखा करना कोई फायदा नहीं ठीक है ना सो जिमें मर्जी कढ़ लो आंसर तो तुहाडा आ ही जाना तरीका समझना जरूरी है कि तुहाडा दिमाग पेपर दे विच किवें काम कर रहा है तो वह काम करूगा प्रैक्टिस के आधार पर तो 75:10 अपन दे रखा सी 3:4 कर लिया 3:4 मैं सौखा करके 300 400 कर लिया 300 का 5% लॉस तो 15 लॉस हो गया तो कितना हो गया भाई 285 का तो जोड़ा 400 है 400 15% फायदे च बेचता 15 चौके 60 तो 460 च बेचता 285 तो जोड़ा है 460 कितना बन गया 745 बन गया 745 ही 745 के बराबर है तो मतलब 300 400 भी सही है तो 400 आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू बिल्कुल सौखा ना तो ये मैथ है ही चीज़ कंसैप्ट वाली है ही चीज़ कंसैप्ट वाली तुसीं इस चीज़ को रट्टा ला ही नहीं सकते जिहड़ी चीज़ है ही कंसैप्ट वाली जिन्होंने है ही समझना लो भाई आ भी क्वेश्चन तुहाडा आया होया PSPCL दे विच देखो ध्यान दे नाल ठीक है कहता भाई ए कहता जोड़ा है 22,750 डिवाइड करदा अमंगेस्ट PQRS दे विच PQRS दे विच चारां दे विच बनदा जिहदे पता भी P एंड Q R ते R एंड S इन्हां दे अपना रेशो दे रखे 2:3 तो कहता दसो शेयर R दा की है बस फिर आ भी 2:3 आ भी 2:3 आ भी 2:3 तो हम P रेशो क्यू भी तुहानूं 2:3 दिता होया क्यू रेशो R भी तुहानूं 2:3 दिता होया R रेशो S भी 2:3 दिता होया तो सॉल्व करना सौखा ही है तो कढ़ लो भाई 2:3 2:3 2:3 P रेशो क्यू रेशो R रेशो S ठीक है इत्थे 2 आ जाऊगा इत्थे भी तुहाडा जिहड़ा 2 आ जाऊगा ये तो कढ़ने आउंदे भाई रेशो हुण रेशो तो आनी चाहिए है ठीक है इत्थे तुहाडा 3 आ जाऊगा नीयरेस्ट है जिहड़ा इत्थे भी तुहाडा 3 आ जाऊगा कढ़ लो तो ये बन गया 2 दा क्यूब 8 बन गया 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया 3 9 दूनी 18 आ गया तो 27 आ गया राइट है यानी 8:12 रेशो 18 रेशो 27 आ गया टोटल कितना बनता है 8 ते 12 20 20 ते 18 38 38 ते 27 ठीक है ना 8 ते 12 20 20 ते 18 38 38 ते 27 38 ते 27 40 ते इनू कर लो 25 65 आ गया यानी 65 बराबर तुहाडा टोटल 22,750 के बराबर दे रखा कढ़ना की कला R कढ़ना गा तो R कित्थे पिया तुहाडा PQR R
तो आर पिया तुहाडा 18 18 की वैल्यू कढ़नी है। कढ़ लो भाई 22,750 बटा 65 गुणा 18 राइट है। तो कितना आंसर आ जाऊगा भाई 9 का मल्टीपल 18 9 का मल्टीपल है आ भी है नहीं आ भी है नहीं आ आंसर हो सकता या आ आंसर हो सकता है। इन्होंने दोनों चो आंसर है। पहली गल तो सीधा ही ऑप्शन कट्टे गए इन्होंने दोनों चो आंसर है तो फिर कढ़ लो भाई। तो 7 भी आऊगा ना 13 5 7 के मल्टीपल बनूगा तो 9 7 63 तो मेरे हिसाब से 63 आंसर बनूगा 7 का मल्टीपल बन रहा तो आही आंसर होगा। बाकी कढ़ के देख लो ठीक है कढ़ लेने तो 13 5 65 शायद यही आंसर चलो कढ़ के देख लें 13 5 65 आ गया ठीक है। तो 13 एकम 13 13 एकम 13 बन गया कितना बच गया 9 बच गया तो 13 7 91 13 7 91 6 बच गया 65 आ गया 13 5 65 हाँ 7 का मल्टीपल ही बनूगा ठीक है। तो यह आ गया 175 175 यानी 5 30 15 तो 5 30 15 तो 5 5 25 35 गुणा 18 आ गया 35 गुणा 18 ठीक है। 35 गुणा 18 18 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ करो तो कितना आ जाऊ 54 54 सौ आ गया नाल जीरो भी हैगी राइट 54 सौ आ गया 18 5 कितना होंगे 90 हाँ नाल जीरो ला दो तो 6300 आंसर आ गया बिल्कुल सही 6300 आंसर आ गया ठीक है। सो भाई ये तुम कढ़ के देख लो बहुत ज़्यादा सौखा गा ठीक है। इतने 100 आज नाल जीरो भी लानी है ना चलो तो 175 यानी 350 होगा तो 6300 आंसर आ गया। यानी बस इतने कली रेशो कढ़नी सी होर कुछ नहीं। हुण रेशो तो कढ़नी आउंदी होगी तुहानूं ठीक है ना। रेशो कढ़नी आउणी चाहिदी है पी रेशो क्यू क्यू रेशो आर आर रेशो एस तो जिहड़ा नेड़े नेड़े उवें लाई जाना आही सीगा ये किन्ने बारी मैं कराया होया राइट। नहीं तुसीं ऐवें कर सकदे सी भी पी रेशो क्यू है क्यू रेशो आर है तो आर रेशो एस है पर ये शॉर्टकट सीखने मैनूं लगदा भी रिस्क जा रह जांदा है। आही आपां नूं दित्ता होया ना आही आपां नूं दित्ता होया कंसैप्ट देखो पी रेशो क्यू क्यू रेशो आर रेशो एस आपां नूं आही दित्ता होया। शॉर्टकट हुण पता की बनदा देखो 8 आ गया ये पी आ गया तुहाडा क्यू क्यू की आऊगा 2 3 6 दूनी 12 2 3 6 दूनी 12 राइट हो गया। हुण आ गया तुहाडा आर आर की आऊगा देखो फिर इहनूं छड्ड दो फिर आ जाऊगा 3 दूनी 6 30 18 तो फिर जे एस कढ़ना तो यदा कर दो 3 30 9 30 27 8 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 27 देखो ध्यान देना 8 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 27 पर मेरा मनना यह है कि शॉर्टकट तो मैनू भी पता है पर फिर भी मैं इन्हों प्रैफर नहीं करता कदे भी कि क्योंकि यह टाइम प्रैशर जोड़ा होंदा वो टाइम के अकॉर्डिंग तुहाडे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। सो जो एवें निकल रहा कहते होंगे जो सीधी उंगली नाल घ्यो निकल रहा तो फिर टेढ़ी करनी जरूरी है ठीक है ना। शॉर्टकट आपां अट्रैक्ट कर दिया कोई होगा कोई ऐसा जो वीडियो बनाने वाला वो तो शॉर्टकट बड़ा करा जू 2-4 क्वेश्चन होर करा जू थोड़ा लोगों भी बड़ा पर उत्थे क्वेश्चन घुमा के आ जाता फिर आप भुल जाने जे हुण मान लो इत्थे माड़ा जिहा घुमा दा मैं कि क्यू अनुपात आर है आर अनुपात एस है तो इस बाद मैं कहदा भी पी अनुपात एस है मान लो मैं दसता इत्थे ही उलझ जाओगे इत्थे ही आह स्ट्रैटेजी तुहाडी गलत हो जानी है क्योंकि अपनी निगाहां इत्थे घट रहिंदियां शॉर्टकट ते ज़्यादा रहिंदियां ना दिन आपां करांगे जी ऐं कीता सी वो गलत हो जाना क्योंकि इत्थे क्यू अनुपात आर हो गया इत्थे आर अनुपात एस हो गया इत्थों तक तो ठीक है इत्थे या तो एस अनुपात पी हुंदा फिर कर लेंदे पर इत्थे पी अनुपात एस आ गया बस तो समझना गा भी लै बनती है पी अनुपात क्यू है इत्थे फिर तो क्यू अनुपात आर इत्थे आर ही है पर इत्थे देखो इत्थे आर जरूर है इत्थे एस नहीं हैगी पर डायगनली तो चीज़ां टैक्नीकली देखनियां पैंदियां दिमाग थोड़ा जिहा लाउणा पैंदा पर जिवें मैं करवा रहा कंसैप्ट वाइज उस तरीके नाल कर लोगे तो ज़्यादा फायदा रहूगा। लो भाई शॉर्टकट तो अपने आप ही आ जाते हैं। टू अलॉयज ए एंड बी कहता दो अलॉय है ए ते बी ठीक है। कॉपर कहता उन्होंने विच रेशो यानी ए दे विच कहता कॉपर ते जिंक की जी रेशो है वो हैगी जी 1:3 तो जोड़ा बी है वो जी रेशो है वह कितनी हैगी है 5:3
2 कहता जेकर 3 किलोग्राम इधर होवे यानी आ 3 किलोग्राम होवे टोटल तो कहता 2 किलोग्राम इधर होवे यानी आह 2 किलोग्राम का लवाए आ तो कहता दसो भाई जो आप इन्हों मिल्ट करके कंबाइन करते हैं तो जी सी दे कॉपर तो जिंक टू कॉपर जी रेशो आऊगी वो कितनी आऊगी। क्वेश्चन बहुत सौखा है तो बहुत बार ये क्वेश्चन मैं कराए हुए हैं चंगी तरह। देखो हम पिछले तो पिछले साल के पेपर है तो क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं राइट। ध्यान दे नाल देखो भाई हुण आह 1:3 है तो आह 5:2 है। पहला कंसैप्ट समझो राइट। आ भी कॉपर तो जिंक की ही रेशो है तो आ भी कॉपर तो जिंक की रेशो आ 3 किलोग्राम च 3 किलोग्राम के आह कॉपर किन्ना गा जी आह 1:3 है तो 1/4 है तो मतलब 3 किलोग्राम के तो 3 किलोग्राम के मैं पहला कॉपर ये ले लिया प्लस हुण कंबाइन कर रहे हैं आप तो कॉपर इधरों कॉपर के नाल जुड़ूगा जिंक के नाल जुड़ूगा तो मैं इधरों कॉपर ले लेना पर 2 किलोग्राम च तो 2 किलोग्राम च आह कॉपर कितना 5 बटा टोटल कितना है 7 5/7 है तो इन्होंने दोनों मैं कंबाइन कर लिया ये हो गया तो भाई कॉपर। हुण आजो जिंक की बारी रेशो ये आप सी बना रहे कंबाइन कर रहे हैं राइट। तो हुण तुहाडा जिहड़ा आ गया भाई वो जिंक आ गया 3 किलोग्राम च जिंक कितना गा 3/4 उल्टा बस इतने 1/4 सीगा इतने 3/4 हो जाऊगा राइट ठीक है प्लस हुण इत्थे भी जिंक ही देखांगे इत्थे जिंक देखा तो 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम च जिंक कितना 2/7 आ गया ठीक है। बस इन्हां दी रेशो बन गई आही तुहाडा आंसर है कढ़ लो। तो आ गया 3/4 ये बन गया 2 5 10/7 रेशो 3 9/4 प्लस 2 दूनी 4/7 आ गया राइट। तो यदा लघुत्तम आ गया 28 तो 7 3 21 प्लस 40 रेशो 7 चौक 28 7 नाम 63 प्लस चौक चौकी 16 आंसर कितना आ गया 21 ते 61 आ गया तो आह कितना आ गया 63 ते 16 कितना आ गया तुहाडा 63 ते 16 कितना होंदा गा 79 61 रेशो 79 आ गया 28 28 तक कट्टिया जाऊगा 61 रेशो 79 तुहाडा आंसर आ गया। यह आ गया तुहाडा कॉपर ते जिंक का कॉपर ते जिंक की रेशो आ गई। बस इतने ध्यान थोड़ा जिन्ना देना भी कॉपर ते जिंक की पूछे या जिंक ते कॉपर की पूछी है ठीक है। तो आपू इत्थे जिंक टू कॉपर पूछी हुई है जिंक टू कॉपर पूछा होया तो यदा मतलब जेकर जिंक टू कॉपर पूछा तो फिर कितना आ जाऊगा 79 सही 61 आ जाऊगा। तो 79 सही 61 आ पे पहला ऑप्शन देखो आ भी दिता होया भुलेखा पाने वास्ते तो 79 सही 61 आंसर आ गया। आपू जिंक टू कॉपर पूछा यानी जिन्ना भी आंसर सीगा वो उल्ट कर दो ठीक है। मैं भुल गया की सीगा हाँ कॉपर तो जिंक की कढ़ी है ना आप जिंक टू कॉपर पूछा तो उल्ट कर दो ठीक है ना। सो आ मैथड है हुण इहदा शॉर्टकट भी है पर शॉर्टकट आऊ उसनूं जिन्हें कंसैप्ट समझा होगा राइट। सो मेरे हिसाब के नाल तुसीं समझ गए होगे मैं कल्ले कल्ले नूं कंबाइन करता इत्थों कल्ला कॉपर कढ़ लिया इत्थों कल्ला कॉपर कढ़ लिया आ 3 किलोग्राम सी आ 2 किलोग्राम सी कल्ला कल्ला कढ़ लिया उस तो बाद कंबाइन करता आंसर आ गया। हुण जे मान लो इस तो भी सौखा करना जे मान लो इस तो भी सौखा करना है जिन्हों ने क्लास लगाई हो मेरी वो कढ़ सकते आराम के नाल किवें देखो 3 किलोग्राम तो इत्थे हैगा भाई तुहाडा 2 किलोग्राम राइट। यह अनुपात कितना बनता 1:3 बनता यह कितना बनता 5:2 बनता आ टोटल कितना हैगा 7 आ टोटल कितना तुहाडा भाई 4 तो इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो तो 7 एकम 7 7 एकम 7 तो इधर 3 किलोग्राम है तो नाल दी नाल 3 नाल मल्टीप्लाई ठीक हो गया ओके। इस तो बाद तुहाडा इधर आ गया आह आह तुहाडा हैगा कॉपर तो आ जिंक है आप कॉपर की गल कर रहे हैं 7 1 हो गया प्लस कॉपर नूं कॉपर दे विच तो आ 4 है तो 4 5 20 4 5 20 2 किलोग्राम है तो 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो 20 दूना 40 7 या 21 प्लस 20 दूना 40 कितना बन गया 61 बन गया राइट। हुण आजो जिंक की बारी तो 7 3 21 इधर आ जिंक है 7 3 21 7 3 21 गुणा 3 क्योंकि 3 किलोग्राम है राइट। 4 जिंक इधर 4 दूनी 8 तो नाल गुणा 2 यानी कि 2 किलोग्राम तो आ बन गया 16 तो आ बन गया तुहाडा 21 84 प्लस 16 84 प्लस 16 21 ते 63 सॉरी 21 ते 63 63 प्लस 16 कितना आ गया 79 आ गया तो इधर भी 61 आ गया इधर भी 79 आ गया देखो तो उल्ट कर दो बस आही तुहाडा आंसर है
ठीक है, क्योंकि जिंक ते कॉपर की पूछी है। 61 ते 79 आंसर आ गया। गलबात इत्थे भी उही है, पर उही गल है भी बस थोड़ा जिहा शॉर्टकट है, आया उसे कंसैप्ट चों ही है, राइट है ना। आ टोटल 4 बनता, सारा कुछ कराया होया है, पर गल उही है भी की तुसीं कीता होया, जां तुसीं भुल चुके हो, जां तुसीं इसे तरीके नाल समझिया होया। नैक्सट, जिन्ने भी हुण तक पेपर होया, चाहे SI का पेपर है, चाहे पटवारी का पेपर है, चाहे कांस्टेबल का पेपर है, चाहे फलाना त्योंका, बहुत सारे पेपर है, गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आउट होगा होवे, पर जे कंसैप्ट वाइज किया होया तां। चलो 15x प्लस 7y 7x प्लस 15y तुहानूं दिता होया जी 29:37, ठीक है। तो तुहानूं पुछया की आ 15x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर, आ पूछा होया, राइट है। बहुत सौखा गा, कंपोनेंट और डिविडेंड कर लो, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, राइट है। इत्थे थोड़ा जिहा बस ये आया भी ये इहो जिहे क्वेश्चन है कि जिन्होंने दिमाग नाल करना पैंदा है, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंड की हुंदा है, जे मैं तुहानूं कहां कि 1:2 है, कंपोनेंट और डिविडेंड कर दो तो तुसीं की कर सकते हो कि 1 - 2 करता, इत्थे छोटे होंदे तुसीं करदे होंगे ना, मान लो x/y है, कंपोनेंट और डिविडेंड कर दो तो तुसीं की करोगे जी, x ऊपर कर दो -y, नीचे कर दो +y, जां ऊपर कर दो +y, नीचे कर दो -y, राइट, एवें कर सकते हो, ठीक है। चलो कंपोनेंट और डिविडेंड आपां कर देना दोनों पासे, तो सौखा बन जूगा, उहदे नाल इक्वेशन सौखी बन जूगी, यानी 15x प्लस 7y दे विचों मैं की कर दांगा, माइनस कर देना -7x माइनस 15y, तो जो मैं इधर करूँगा तो 29 - 37 आ जाऊगा, 29 - 37 आ गया, ठीक है, बटा। हुण इसे दे विचों मैं इहनूं जोड़ देना, यानी 15x प्लस 7y प्लस 7x प्लस 15y, यानी इत्थे 29 प्लस 37, 29 प्लस 37। कंपोनेंट और डिविडेंड फार्मूला होंदा है, एक छोटे होंदे तुसीं बहुत बार कीता गा, तो मैं की कीता, उपरले चों पहलां निचले नूं घटाता, फिर यानी न्यूमरेटर चो डिनोमीनेटर घटाता, डिनोमीनेटर जिहड़ा, तो न्यूमरेटर दे विच डिनोमीनेटर जिहड़ा जोड़ता, 29 चों 37 माइनस करते, फिर 29 चों 37 जोड़ते, ठीक है। इहदे नाल देखो कितनी सौखी कैलकुलेशन बन जूगी, यानी 15 चों 7 कड्ढे तो 8x आ गया, तो 7 ये कितना आ गया तुहाडा 8y आ गया, राइट। जो मैं सॉल्व किया नीचे 15 ते 7 22x आ गया, तो आह तुहाडा कितना बन गया 22y बन गया। 29 चों 37 कड्ढे तो कितना होंदा भाई, माइनस तुहाडा 8 हो गया, तो 29 चों 37 जोड़े जदों तो 30 चों 36 जोड़ दो, कितना बन गया तुहाडा 66 बन गया, राइट हो गया भाई, ठीक है। इत्थे आ गया तुहाडा 8 कॉमन उपर, तो इत्थे बच गया x माइनस वाई, नीचे आ गया 22 कॉमन, इत्थे बच गया तुहाडा x प्लस वाई, राइट। तो इधर -8 ते 66, तो 22 नाल कट्टा गया, 22 30 66, 8 नाल 8 कट्टा गया, यानी x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर किहदे आ गया, -1 अपॉन 3 के बराबर आ गया। देखो कंपोनेंट और डिविडेंड करके कितना ज़्यादा सौखा हो गया। हुण आ इक्वेशन तो सॉल्व करना बहुत सौखा हो गया, इहनूं सॉल्व कर दिंदे भाई ध्यान दे नाल। इहनूं जदों सॉल्व किया तो 3x आ जाऊगा, तो -3y हो गया, आ -1 इनू करो -x हो गया, -y हो गया, इनू ले जाओ 4x हो गया, इनू ले जाओ 5 ना प्लस का हो जू, तो उत्थे जाके यह 2y बन जाओ, इधर -y है, तो यानी कि x 2 दूनी 4, यानी x ते y की जी रेशो आ गई वो कितनी आ गई 1:2 आ गई। बस मुद्दा इत्थे ही सीगा, कंपोनेंट और डिविडेंड करके आप x/y कढ़ लिया। हुण आंसर कढ़ना बहुत सौखा गा, पहला तो इन्ना ही समझो कि की कीता मैं ध्यान दे नाल। फिर 15x प्लस 7y ते वटा 7x प्लस 15y 29/37 के बराबर अपन दे रखा सी। मैं कंपोनेंट और डिविडेंड की कीता, उपरले चो थल्ले नूं पहले माइनस करता, फिर उपरले नूं थल्ले नाल जोड़ता, यानी 29 - 37 हो गया, 29 प्लस 37 हो गया। इत्थे सारा कुछ कर करा के इत्थे की आ गया 8 कॉमन आ गया, इत्थे 22 कॉमन आ गया, कट्टिया गया 8 नाल 8 कट्टिया गया, 22 30 66 कट्टिया गया, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई तुहाडा बराबर -1/3 आ गया। इत्थों मैं हुण x अनुपात y कढ़ ली, यानी 3 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई कीता 3x - 3y, -1 नूं इहदे नाल कीता -x - y, x उधर चला गया 4x आ गया,
3y उधर चला गया प्लस 3y तो प्लस 2y रह गया। ये रेशो यानी कि 1:2 आ गई x अनुपात y की। ਜਦੋਂ ਆਹ ਆ ਗਈ इदू बाद ਕੱਢਣਾ बहुत सौखा हो गया। क्यों? क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ x अनुपात y पता लग गया ਜਿਹੜਾ कि कितना आया ਸੀਗਾ 1:2 राइट। यानी x की थां ते 1 पुट कर दो, y की थां 2 पुट कर दो, कर लो भाई। तो 15x स्क्वेयर, x स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1 ही रह जाऊगा प्लस 7y, y का स्क्वेयर y कितना 2, 2 का स्क्वेयर 4 यानी 7 चौका 28 बन गया राइट। रेशो 7x स्क्वेयर, x की वैल्यू हैगी 1, एक की स्क्वेयर 1 ही रह जाऊगा यानी कि 7 प्लस 15y स्क्वेयर तो 2 का स्क्वेयर 4, 15 चौके 60 यानी 60। तो ये कितना आ गया 67 आ गया। तो 28 तो 15 कितना हो गया तो 43। तो 43 रेशो 67 आंसर आ गया। तो 43 रेटो 67 आंसर आ गया तो कितने पे? हाँ पे 43 रेशो 67। तो अद्धे मिनट के क्वेश्चन सारे ये सारे PSPCL आए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत सौखे है ठीक है। सो 47 रेशो 67 आंसर थोड़ा आ गया। क्या आपको आंसर समझ में आया? ठीक हो गया ना। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। आ भी पेपर दे विच आया होया ते आपां कीता होया ध्यान दे नाल। कहंदा ये सम 52,040 रुपये है, उन्होंने डिवाइड किया जाता कहंदा ए ते बी दे विच ओके। दैट अमाउंट कहंदा 3.5 साल बाद अमाउंट ऑफ ए 3.5 साल बाद इज इक्वल हो जाती है अमाउंट ऑफ बी 4.5 साल बाद। हुण जो अमाउंट सेम होंदी है, सिंपल इंटरस्ट जाके देखियो या कंपाउंड इंटरस्ट दे जाके देखियो। हाँ कंपाउंड इंटरस्ट में जाके देखियो तुहानूं दस्सिया होया कि जदों अमाउंट सेम होंदी है जां सिंपल इंटरस्ट जो सेम होंदा तो उदों की फार्मूले बनते हैं राइट। चंगी तरह एक्सप्लेन किए हुए पटवारे की टेस्ट सीरीज जी आप चलाई सी उहदे विच भी समझाए हुए राइट। चलो खैर तो जदों अमाउंट सेम होंदी है तो की हुंदा गा प्रिंसीपल की रेशो जी आउंदी है, मूलधन की जी रेशो आउंदी है वो की आउंदी हैगी 1 + r/100 t 1 + r/100 टी। हुण अलग अलग है यानी इत्थे आर सेम भी हो सकते, टी सेम भी हो सकते। की सेम आप क्वेश्चन के देखते पर मैं फार्मूला किहड़ा लिखता ये तुहाडे दिमाग दे विच नाल दी नाल आ जाना चाहिदा सी जदों तुसीं क्वेश्चन पढ़िया कि अमाउंट इक्वल है राइट। हुण कहंदा आह 3.5 साल बाद अमाउंट जिहड़ी ए दी आ ते अमाउंट बी दी 4.5 साल बाद अमाउंट सेम हो जाती यानी टाइम अड्ड अड्ड है। यानी इत्थे तुहाडा हैगा 3.5 साल यानी 3.5 साल, इत्थे 4.5 साल बिल्कुल ओके है। पर उदों बाद कहंदा पर जिहड़ा इंटरस्ट है कहंदा कंपाउंडड हाफ ईयरली, तो जो हाफ ईयरली हुंदा गा उदों टाइम दुगना हो जाता। यानी जे हाफ ईयरली का मतलब जे मैं 1 साल कहा तो फिर मैं उदों बाद कह दूँ भी कंपाउंडेड इंटरस्ट हाफ ईयरली तो यदा मतलब 2 बारी लगूगा 6-6 महीनों बाद हाफ ईयरली है ना तो दुगना हो जाता टाइम। यानी 1 साल है तो फिर मैं कहूँगा 6 महीने 2 बारी हो गया दुगना हो गया। इस तरीके जे मैं कहा कि 2 साल है तो मैं हाफ ईयरली करता तो 4 पार्ट्स के कन्वर्ट हो जाऊ 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 4 पार्ट्स के इस तरीके तो यानी 3.5 साल है तो यदा डबल कर दो 7 हो जाऊगा तो आह 4.5 साल है तो डबल कर दो 9 हो जाऊगा। यानी टी की वैल्यू इत्थे तो हैगी है 7 तो इत्थे हैगी है भाई 9 राइट हो गया। ये अड्ड अड्ड हो गए। इस बाद कहता जी रेट ऑफ इंटरस्ट है जो 8% है। रेट ऑफ इंटरस्ट यानी कि दोनों पासे 8% है यानी इत्थे भी 8 है तो इत्थे भी 8 है यानी ये कोई फर्क नहीं पैंदा। यानी कि इत्थे हैगा 1 + 8/100 7 1 + 8/100 9 यानी रेशो है तो फिर कट्टिया जाऊगा आ 7 का 7 कट्टिया गया इत्थे कट्टिया जाऊगा 2 रह गया। पावरां तो कट्टनी आउंदियां ना जे मैं तुहानूं कहा कि 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 4 तो 2 की पावर पूरा कट्टा ही 2 रह जाऊगा। वही है कि आह भाई पूरा 1 + r/100 पावर 7 है तो 1 + r/100 पावर 9 है तो 7 तो 7 पूरा कट्टेगा 2 रह गया राइट। यानी कि तुहाडा ये की बन गया 1 अनुपात पूरा कट्टिया गया राइट। आह बन गया तुहाडा 1 4 दूनी 8 तो 4 25 यानी ये बन गया तुहाडा भाई 25 ध्यान दे नाल ठीक है ना। अच्छा जो इंटरस्ट एक गल होर कि जो हाफ ईयरली है तो इंटरस्ट भी अद्धा हो जाऊगा वो तो चलो कट्टिया गया इत्थे 4 बन जाऊगा इत्थे भी 4 बनूगा। जो इंटरस्ट है जोड़ा आप हाफ ईयरली की गल करते जी फॉर एग्जाम्पल मैं कहा कि 12% पर एनम का मतलब हर साल 12% इंटरस्ट लगता पर कंपाउंड इंटरस्ट आपको इतने हाफ ईयरली कहा तो जो इंटरस्ट है वह भी अद्धा हो जाना 8% का 4% हो जाए
यानी इत्थे 4 आऊगा, तो 4 एकम 4 4 25 है, यानी 26/25 आ जाऊगा। 26/25 25 ऊपर चला जाऊगा, ठीक है। जे इन्हों की रेशो बनती तो 26:25 बन गया। 26 इधर लियो, तो आह रेशो आ गई तुहाडी प्रिंसीपल की P1 ते P2, मूलधन की रेशो यानी कि 26:25 आ गई, ठीक है। सो ये क्वेश्चनों के विच कख नहीं, सारे क्वेश्चन एज इट इज ये क्वेश्चन किए हुए, समझ लगी। सो भाई 26:25 आ गया, बस इदू बाद तो सॉल्व ही करना, और कुछ नहीं, ठीक है। सो ध्यान दे नाल हुण मैं तुहानूं शॉर्टकट दसदा माड़ा जिहा इसे दा ही, कि जो तुसीं क्वेश्चन पढ़िया तो तुहानूं नाल पता कि अमाउंट सेम है, तो की करना सीगा कि 1 + R/100, यह भाई तुहाडा 7 करता हाफ ईयरली करके, आह तुहाडा 1 + R/100, ये तुहाडा 4.5 आ, तो हाफ ईयरली करके 9 हो गया, पूरा पूरा कट्टिया गया, आ 2 बच गया, तो यानी कि इंटरस्ट है जो भी अद्धा हो जाना 8% का, यानी 4 हो गया, 4 इत्थे 25 आ गया, 25 25 1 26 आ गया, 26/25 आ गया, तो आह 1:1/26/25 है, तो 26 रह गया थले, तो उपर आ गया 25, यानी ये बन गया तुहाडा 26:25। इन्ना कुछ सी जिहड़ा मैं इन्हें लम्मे च तुहानूं दस्सिया गा, राइट। जे सॉल्व करना हो तो 26:25 आ गया, यानी दोनों मिला के जिहड़ा पूरी अमाउंट बनती है कितनी बनती है, सम कितना बनता 52,040, यानी 26 ते 25 कितना होंदा 25 25 50 ते 1 51, यानी 51 बराबर तुहाडा आ गया 52,040 दे। 52,040 की आपां वैल्यू किहदी कड्ढनी है, कहंदा डिफरेंस कड्ढना दोनों दे विच, दोनों दे डिफरेंस तो एक दा ही है, आ 26 है आ 25 है, एक दा डिफरेंस है, तो एक दी वैल्यू कड्ढनी है, तो 1 बराबर किहदे हो, तो बस 1 बराबर किहदे होना गा 52,040/51। कर लो भाई सॉल्व इन्हूं सॉल्व करना, तो 51 एकम 51, 1 बच गया, 51 0, फिर 4 बच गया, फिर 51 नूं करांगे आपां 51 1 52 104, कितने गड़बड़ पैगी, ओह पावर 2 आ यार, मैं भी आख्या कितने गड़बड़ पै गई, ध्यान दे नाल, ठीक है। तो आह जो आप किया कि आह 1 आ गया, तो आह 1 बटा आह जो 26/25 है पावर 2 आ भाई, 26/25, तो 26 का की हो जाऊगा 676, तो 25 का की हो जाऊगा 625, ठीक है ना। आह 25 एकम 25 25 1 26 बनूगा ना, तो 26 का स्केयर 676 होंगे, 25 का स्केयर 625, तो रेशो जी बनूगी वो 676 रेशो 625 बनूगी, आ बनी है, ठीक है। तो आह टोटल कितना गा तुहाडा, हुण देखो आ टोटल कितना बनता है 676 तो 625 625 600 600 1200, ठीक है, 1200 तो 75 तो 2500 1300 1301 बन गया, यानी कि आ जिहड़ा 1301 है तुहाडों 52,040 के बराबर दे रखा। हुण डिफरेंस कढ़ना, डिफरेंस ए ते बी दे विच डिफरेंस कितना गा 75 ते 25 डिफरेंस हुंदा 50 का, तो 51 का डिफरेंस आ गया, यानी 51 की वैल्यू कढ़नी है। हुण कढ़ो तो 52,040/1301 गुणा 51, ये वैल्यू कढ़नी है, ठीक है ना। चलो बस कर लो सॉल्व इनू, तो 1301 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 5204 आता, तो 51 नूं 4 ना करोगे तो कितना आ जाऊगा, 50 नूं 4 ना करोगे तो 2000, 51 होड़ जोड़ दो, राइट। तो इन्ना तुहाडा आंसर आ गया, यानी 4 1 4 5 20 2040 आंसर आ गया, आ गया, ठीक है या नहीं, क्या आपको समझ में आ रहा है। मैनू पता कि यह जो मैं कराउणागा तो बहुत स्टूडेंट जोड़े होणगे हो सकता उन्होंने नैगेटिव इंपैक्ट पैदा हो कि सर पता नहीं यार इन्नी छेती छेती क्यों करवाए जाते, मैंने मैसेज आ जाते ना सर इन्नी छेती ना कराया करो, भाई ये है ही रिवीजन क्लास, इत्थे मैं उवें नहीं कर सकता, जो मैं समझाउणा उदों तो मैं कल्ली कल्ली 2 गुणा 2 भी दसूँगा, उदों कल्ला कल्ला स्टैप कराऊँगा, कल्ली कल्ली पौड़ी चढ़ाऊँगा, पर इत्थे उवें नहीं हो सकता, पॉसीबल ही नहीं, राइट। अस 2040 आंसर आ गया, समझ लगी भाई। हाँ ए लोन ऑफ रुपीज़ 8400 टू बी पेड बैक, कहता 8400 रुपया वापस करना है, कहता 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरस्ट चार्ज 10% पर एनम, यानी जेकर पहले साल 10% इंटरस्ट का मतलब की होंगे, 10% का मतलब की होंगे 1/10, यानी 10 रुपये पिछे उन्होंने 1 रुपया एक्सट्रा देना पैंदा इंटरस्ट का, 10 रुपये पिछे उन्होंने 1 रुपया इंटरस्ट का बैक देना पैंदा, जिवें आप कहना भी 10 रुपये मैं उधार ले ले तो मैं लोन ले लिया,
10 रुपये जेकर मैं उधार ले लिया लोन ले लिया, जे 10% रेट ऑफ इंटरस्ट लाता तो वह मतलब की आ कि 10% ते 10% 1 रुपया बनया, यानी मैनू 1 रुपया जोड़ा है वो एक्सट्रा देना पै रहा, यानी 10 रुपये पिछे मैनू पहले साल 11 रुपये देने पैणगे। फिर दूसरे साल की गल है क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो दूसरे साल भी मैनू 11 रुपये देने पे, इक्वल इंस्टॉलमेंट है राइट। इक्वल इंस्टॉलमेंट जेकर मैं दूसरे साल की गल करूँगा तो इंटरस्ट पर भी इंटरस्ट पऊगा, आ तो 10 रुपये पहले वाले है 10 रुपये होर है, तो 11-11 इस तरीके के कंपाउंड इंटरस्ट च इंटरस्ट तो इंटरस्ट पैंदा गा। हुण क्योंकि अपन इंस्टॉलमेंट आ जी एनू वो इक्वल है, तो जाने कि आह जेकर 11 गुणा 11 तो इनू भी अपन 11 गुणा 11 करना पऊगा, तो जेकर इनू 11 गुणा 11 किया तो फिर मैंने इधर भी बराबर करना पऊगा। ये रेशो है राइट है ना, एक क्वेश्चन किया होया, ये पता नहीं शायद पटवारी मेन्स दे विच भी इहो जिहा क्वेश्चन आया सी, उत्थे भी मैं सॉल्व करवाया सी राइट हो गया। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे विच यानी 10 रुपये पिछे 11 देने पैंदे, दूसरे साल 10 गुणा 10 2 बारी हो गया तो फिर 11 गुणा 11 हो गया, पर अपन इक्वल करनी पैनी इंस्टॉलमेंट क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इक्वल करनी पैनी इंस्टॉलमेंट दिख रहा ठीक है। 11 गुणा 11 11 गुणा 11 हो गया, तो आह इक्वल हो गया, तो जो मैं इधर 11 ना गुणा की तो फिर मैंने इधर भी 11 ना गुणा करने पऊ, तो हुण देखिया जो तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट किनिया ये बन गया। हुण अपन पुछया की अपन पुछया कहंदा भी जेकर लोन 84 रुपये है 8400 रुपये है, आ तुहाडा लोन हो गया, आ 110 है तो आह प्लस 100 यानी कितना बन गया 210 रुपये बन गया। तो 210 रुपये अपन 8400 बराबर दे रखा, 210 रुपये अपन 8400 बराबर दे रखा। अपन ईच इंस्टॉलमेंट पूछी है, यानी एक इंस्टॉलमेंट पूछी है भी एक इंस्टॉलमेंट किन्ने दी है, एक इंस्टॉलमेंट कोई भी 121 है ईच इंस्टॉलमेंट, तो 121 11 गुणा 11 121 पूछा कि बराबर आ जाओ, तो 21 चौका 84 21 चौका 84 1 0 यानी 40 ने मल्टीप्लाई करोगे 210 में 8400 आ जाऊगा, तो 121 भी फिर 40 ने मल्टीप्लाई कर दो, जाए कर लो 8400 बटा 210 गुणा 121, तो गल्ला बात सेम ही है। तो 40 को 121 ना गुणा कर लो भाई, 121 जो 40 ना गुणा किया 12 चौक 48, फिर वो जोड़ दो यानी ये 48 कितना आ जाऊगा देख लो, 4 दूनी 4840 आ गया, 4840 आ गया। तो है एज इट इज क्वेश्चन अपने किए हुए ने, क्या आपको समझ में आया? 4840 आंसर आ गया, ठीक हो गया भाई, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। 4840 ठीक हो गया। एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो एक्स स्टूडेंट है, तो उन्होंने जी एवरेज है वो 65 है, ठीक है। कहते जी एवरेज स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट जोड़े फेल हो गए, उन्होंने एवरेज जी हैगी 25 है राइट है। यानी जेकर मैं टोटल जोड़ कड्डा, टोटल जोड़ बनता 65x, पर जोड़े फेल हो गए उन्होंने एवरेज 25 है, तो इन्हों का जोड़ बनता है 15 20 ना करोगे तो 300, 15 5 ना करोगे 375 राइट हो गया, तो इन्हों का जोड़ 375 बनता है। कहता जेकर इन्होंने स्टूडेंट मैं कढ़दा यानी 65x के विचों मैं 375 कढ़ती, जे मैं इन्होंने स्टूडेंट को कढ़दा तो कहता इन्हों की एवरेज है कहता 20 मार्क्स इनक्रीज हो जाती है, जोड़े हम बाकी स्टूडेंट बच गए, यानी कि बाकी स्टूडेंट किन्ने बच गए x - 15, क्योंकि टोटल स्टूडेंट मैं x मन्ने तो वो 15 कढ़ते, तो एवरेज कहता हूँ जी हैगी वो 20 वध गई, 20% इनक्रीज होगी, 20 मार्क्स इनक्रीज होगी, यानी हूँ इन्होंने जी एवरेज है वो कितनी है 20, यानी टोटल मार्क्स आह होंगे। यानी कहने का मतलब टोटल 65x है, 65x के मैं जो 375 घटाए तो टोटल मार्क्स आ रह गए, x - 15 एवरेज कितनी है 20 इनक्रीज हुई है। अच्छा 20 इनक्रीज का मतलब जेकर पहला उन्होंने 65 सी तो हूँ कितनी होगी 85, 20 इनक्रीज हुई है, तो यह मतलब हूँ कितनी होगी उन्होंने 85 होगी। बस सॉल्व कर लो, आंसर ਤੁਹਾਡੇ सामने राइट है या नहीं, ध्यान देना। 65x टोटल मार्क्स हो गए, 375 फेल वाले के घटाते, तो x - 15 स्टूडेंट है, 85 उन्होंने एवरेज होगी, 20 इनक्रीज होगी राइट है। तो कढ़ लो भाई, सॉल्व कर लो, तो 65x है इतने, आह 375 है, आह 85x बन गया, तो 85 कर लो 15 नाल राइट, 15 करोगे 80 नाल 15 1200, 1275 आ गया, ठीक है ना। 15 80 ना करता 15 8 120, फिर 5 ना कर दो 15 75, तो 1200 के 75 जोड़ दो, ठीक है, ठीक हो गया। सो ये आ गया भाई, तो हम बस इन सॉल्व कर लो, 65x इधर ले जाओ तो कितना आ गया 20x आ गया, 1275 इधर ले 1275 माइनस 375, यानी 1200 के 300 घटा दो कितना आ जाएगा 900 कट्टिया गया, यानी x की वैल्यू जी आ गई कितनी आ गई वो 45 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई।
ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਯਾਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 45 सो 45 इज द राइट आंसर 45 इज द राइट आंसर क्या आपको ये समझ में आया 45% इज द राइट आंसर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 248 किलोमीटर 248 मीटर ट्रेन है कहता एक लॉन्ग 108 किलोमीटर ਦੇ ਨਾਲ ओवरटुक अनदर ट्रेन ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 112 ਮੀਟਰ ਦੀ 36 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਟ੍ਰੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 108 ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ 112 यानी जेकर आह ट्रेन इस ट्रेन नू ओवरटेक करके गई है यानी ओवरटेक करके गई है जेकर वो ओवरटेक करके गई है तो यदा मतलब वो अपनी लेंथ से ओदी लेंथ नू भी कवर करके गई है ट्रेन इन्नी दूरी तो तय करके गई है तो इस दूरी नू तय किया उन्होंने 36 सेकंड दे विच यानी आह तुहाडी दूरी आ गई आह तुहाडा टाइम आ गया यानी ये बराबर की हुंदा स्पीड दे हुण स्पीडां ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ ਘਟੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਐ ਫਾਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਪੀਡਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਦੀ 108 ਹੈ 108 ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹ -x यानी रिलेटिव स्पीड ਇਹ ਆ ਜੂਗੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ 5/18 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 5/18 ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 18 × 36 ਠੀਕ ਹੈ 248 ਤੇ 112 48 ਤੇ 12 60 ਹੋ ਗਿਆ 200 ਤੇ 300 360 ਆ ਗਿਆ 360/2 108 - x ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 5 18 ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ 5 7 35 5 दूनी 72 ਆ ਗਿਆ यानी x बराबर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 108 - 72 ਆ ਗਿਆ 108 - 72 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਭਾਈ 8 ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ 6 10 36 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ यानी ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 यानी कि ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਤਾ ਹਾਂ 200 300 ਤੇ 360 ਆ ਗਿਆ 360 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆ ਪਿਆ ਆ ਦੋ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹਜੇ ਤਾਂ 36 ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 72 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆ ਬਟਾ 2 ਪਿਆ ਸੀ 72/2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਦੋ 236 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 108 ਚੋਂ 36 ਘਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ 72 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਈ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ 72 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇਹ 36 ਤਾਂ 108 ਚੋਂ 36 ਘਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 72 ठीक है 172 किलोमीटर पर आंसर आ गया समझ में आया क्या क्वेश्चन है सारे किए हुए चलो कहता जी रवि ट्रैवल करता जो ए तो बी वाल ए तो बी वाल तो वो स्पीड है जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जो वो बी तो सी वाल करता तो वो स्पीड है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ओके दोनों की एवरेज है जी कहता वो कहता है 52 किलोमीटर प्रति घंटा ओके जी दैन ए बी तो बी सी यानी दूरियां की कढ़नी है पहला तो टाइम का अनुपात कढ़ लो टाइम का अनुपात किमें आऊगा 52 60 कितना आ गया 8 आ गया एलीगेशन के नाल 40 52 चो घटाओ कितना आ गया 12 आ गया तो टाइम का अनुपात जो आ गया वो 4 दूनी तो 4 तीए 12 आ गया 2 अनुपात 3 है जो टाइम की रेशो आ गई 2 अनुपात 3 है जी टाइम की रेशो आ गई 2 अनुपात 3 टाइम की रेशो आ गई राइट अपन तो दूरी पूछा भी ए तो बी दूरी कितनी है बी तो सी दूरी कितनी है तो ए तो बी वो स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी जेकर वो टाइम की रेशो इतने 2 है तो इन्ना उन्होंने दूरी होगी स्पीड इन्नी 40 किलोमीटर प्रति घंटा टाइम 2 रेशो फिर बी तो सी
60 किलोमीटर प्रति घंटा, तेरी टाइम की कितनी है वो 3 है, बस फिर कट लो। तो 20 30 आ 20 दूना, यानी 4:9 आंसर आ गया। 4:9 आंसर आ गया, आ पे 4:9। तो कई आंसर इतने 2:3 ला जाएंगे, तो कई नहीं, मैनू लगता भी जो 100 जाना पेपर दिता हो तो 99 जोड़े स्टूडेंट है वो 2:3 आंसर ही लाउणगे। पर यह टाइम की रेशो है, क्योंकि आप टाइम की रेशो कढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मिक्सचर एलीगेशन के जो स्पीडा को कॉमन किया जाता है 40 या 60 उन्होंने एवरेज 52, तो जी रेशो आऊगी टाइम की रेशो आऊगी, राइट। तो 2:3 है। फिर उस तो बाद आप दूरी कढ़ ली, 4:9 आ गया। लो भाई नैक्सट क्वेश्चन जो आया होया PSPCL 10% कहता 20 दिनों के 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। MDH मसाले वाला फार्मूला कराया होया, 10 गुणा 20 यानी 1000 यूनिट करते हैं। तो जेकर वो 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। M हो गई परसन हो गए, मैन या जो भी कह लो, आ डे हो गए MDH मसाला, आ वर्क हो गया थोड़ा, ठीक है। इस तो बाद कहता जी जेकर 12% 5 घंटे पर डे काम करन तो किन्ने दिनों काम खत्म हो जाऊगा, 1500 यूनिट कर देना, गल्लां बातां सेम है। तो 50 30 50 दूना, राइट है। 12 5 60, 12 5 60, 12 5 60 तो 20 30 60, 3 नाल 3 कट्टिया गया, राइट है। 2 है जोड़ा ये कट्टिया जो 2 चौके 40 आंसर आ गया। 40 दिनों के काम कंप्लीट हो जाऊगा। ये क्वेश्चन आए हुए ने, सो ये पहली दूजी पौड़ी वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। सो ध्यान दे नाल गाहां वाला क्वेश्चन भाई कहता कंप्लीटिंग टास्क A इज थराइस एज फास्ट एज C, यानी A रेशो C अपन दिता हुआ 3:1। B इज ट्वाइस एज फास्ट एज C, तो ये दिता होया, तो अपन A:B:C कढ़ सकते हैं, आप कढ़ लो भाई। तो A:B:C कितना आ गया 3:1, तो यह आ गया तुहाडा भाई, अच्छा A:C दिता होया, कोई चक्कर नहीं। तो आप की करते हैं A:C लिख लिया, इतने C:B कर दें। तो A:C तुहाडा 3:1 है, तो C:B उल्ट कर दो 1:2 आ गया। तो यह कितना आ गया 3 1 तो 2 ही आ गया, यानी A:C:B आ गया 3:1:2, राइट है ना। इतने C है, राइट है। हुण उल्ट करके लिखना लिख लो, कोई चक्कर वाली गल ही नहीं। तो कहना जो तिने कंप्लीट करते तो 15 दिन काम कंप्लीट हो जाता। आ वर्क की एफिशिएंसी है, यानी एक दिन के 3 करता, एक दिन के 1 करता, एक दिन के 2 करता। तो तिने मिलकर कितना काम करते, 3 ते 1 4 ते 2 6, तिने मिलकर जेकर 6 काम करते तो 15 दिन कितना काम कर देंगे, 15 6 90। तो तिने मिलकर 15 दिन 90 काम करते हैं। इन हाउ मैनी डेज कला ए एक दिन के कितना करता, 3 करता। तो कला ए 90 काम किन्ने दिन कर दो, 90/3 30 दिन, तो 30 दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा सौखा है। A:B:C कढ़ना सीगा, उस तो बाद तो कोई है ही नहीं सी, बस इत्थे थोड़ी जी घुमा के दिता होया भी इत्थे आपां नूं A:C देता। सौखा हुंदा A:B दे दिंदा, फिर जमी सौखा हो जाना सी, बस इत्थे थोड़ा जिहा दिमाग लाउणा सी, बाकी सौखा ही है। लो भाई नैक्सट क्वेश्चन कहता जी एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल है, कहता ऐ ला लो स्विमिंग पूल है, कहता जो 40 मीटर लॉन्ग है जी, आप ऐ लाइए एक तरीके दे नाल एवें, वैसे तो पूल उवें होगा पर एक तरीके नाल एवें 40 मीटर लॉन्ग यानी 18 मीटर वाइड, यानी इत्थों तो लैके इत्थों तक आप कहिए इहनूं 40 मीटर। पानी तो एवें होना, पूल तो एवें होंदा, जमा रैक्टेंगुलर तो होंदा नहीं। चलो तो 40 मीटर लॉन्ग हो गया, शैलो आ तो डीप है, तां ही मैं एवें बनाया। आ तो डीप आ जिहड़ा कहंदा यह हैगा जी 3.55 मीटर, तो शैलो का मतलब उपरों खोखला एवें करके वो हैगा जी 0.7 मीटर। तो कहता इफ द बॉटम ऑफ द पूल स्लोप्स यूनीफॉर्मली दैन अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, यानी ये पानी कितना पऊगा। हुण पानी पऊगा वॉल्यूम के हिसाब नाल, ते वॉल्यूम की हुंदा तुहाडा लैंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। हुण लैंथ ब्रैथ तुहानूं दित्ती हुई है, आह 40 है तो आह 18, हाइट कढ़नी है। हुण हाइट आपां किवें कढ़ सकदे हां, आह आपां नूं डीप देता, आह आपां नूं उपरों दसता 0.7, तो दोनों की एवरेज मान लैंदे आपां, एवरेज मन के, क्योंकि हुण रैक्टेंगुलर तो है नहीं हैगा, तो पूल है, राइट। तो फिर आपां की करांगे, दोनों की एवरेज कढ़ लैंदे आ, उपरों शैलो है तो नीचों वाइड है, दोनों की एवरेज कढ़ के आपां एक
एवरेज हाइट कढ़ सकते हैं। एवरेज हाइट कढ़ ली आंसर आ जाना राइट। यानी उपरों हैगा खोखला 0.7 तो नीचों हैगा डीप 3.55 2 आ तो फिर एवरेज बटा 2 कर दो राइट। तो कितना आ गया तुहाडा तो 0.70 जोड़ना है तो कितना बन जूगा ये 5 5 7 12 4.25 आ गया 4.25 बटा 2 है। एवरेज बन गई तुहाडी हाइट है जी। एवरेज हाइट कितनी आ गई 2 दूनी 4 2 1 2 2 दूनी 2.125 आ गई एवरेज हाइट। आंसर आ जाऊगा। अपन पता लेंथ पता 40 ब्रैड्थ पता 18 तो 2.125 2.125 2.125 ਇਹਦਾ मैं तार देना थले 1000 राइट आ गया बस आंसर आ जाऊगा। तो यह भाई तुहाडा 0 नाल 0 कट्टिया गया 4 25 100 25 8 200 25 5 125 तो 85 ਨੂੰ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 85 ਨੂੰ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 18 ਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 8 8 144 1440 18 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 5 ਦੇ ਨਾਲ 90 ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1530 आ गया 1530 ठीक है ना। पूल है तो आप एवरेज हाइट कट ली अपन उपरों शैलो देता थलों अपन डीप देता आप एवरेज हाइट कट ली एवरेज तो 2.125 आ गया वॉल्यूम कट लो लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट उन्ना पानी पै जाऊगा। चलो 4 क्यूबिक मीटर ऑफ मेटल 4 क्यूबिक मीटर की एक मेटल है इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन आयरन शीट बनानी है ओके ऑफ 20,000 स्क्वेयर मीटर की 20,000 स्क्वेयर मीटर की तो ये थिकनेस कढ़नी है यानी थिकनेस मोटाई का मतलब उन्होंने थिकनेस कह लो क्योंकि मोटी होगी ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ हाइट कह लो होर नहीं तो हाइट कह लो मोटाई कह लो। तो हम यदा वॉल्यूम भी की होगा तुहाडा एरिया वॉल्यूम की होंगे एरिया इंटू हाइट ठीक है। तो एरिया का कितना 20,000 स्क्वेयर मीटर तो हाइट कढ़नी है यानी थिकनेस कढ़नी है मोटाई ठीक है। आ वॉल्यूम हो गया तो है वॉल्यूम किहदा है 4 मीटर क्यूबिक मीटर तो बनाना 4 क्यूबिक मीटर तो बनाना आही है ना बस ये बराबर रखता हाइट कढ़नी है तो कढ़ लो भाई। तो यानी हाइट जी आ गई वो 4 बटा 20,000 आ गई यानी 1 बटा 5,000 4 5 20 1 बटा 5,000 पर मीटर के आया अपन पूछा थिकनेस सेंटीमीटर के सेंटीमीटर के सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो मीटर यानी कि आह 1 मीटर ही रह जाऊगा ना आ कट्टा जो मीटर स्क्वायर 1 मीटर ही रह गया 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होंगे यानी 100 बटा 50,000 5,000 आ जाऊगा 0 नाल 0 कट्टी गई यानी 1 बटा 50 आ गया 1 बटा 50 का मतलब 0.02 सेंटीमीटर ठीक है ना। 1 बटा 50 तो पता ही होगा 50 0 करोगे 0 आ जाऊगा 50 0 फिर आ गया फिर 50 दूनी 100 आ गया तो 0.02 सेंटीमीटर आंसर आ गया। समझ में आया क्या। सो ये क्वेश्चन सारे आए हुए ने बहुत सौखे हैं। लो भाई कहता जी व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ फील्ड इन शेप ऑफ है ना इक्वलेटर ट्रायंगल का जोड़ा एरिया होंगे √3/4 साइड का स्केयर होंगे तो साइड अपन दी हुई है 2a यूनिट्स साइड का स्केयर जेकर 2a है तो स्केयर की होगा 4a स्केयर हो गया रेशो तो रेशो पूछ ली कहना टू दैट ऑफ स्केयर शेप्ड फील्ड विद डायगनल जिहदा दिता होया अपन स्केयर का डायगनल जो दिता हो 2a तो जो डायगनल दिता हो तो अपन उदों भी फार्मूला पता है कि जोड़ा वो होंगे 1/2 गुणा डायगनल का स्केयर जे किया होया तो पता होना चाहिए। स्केयर का एरिया एक तो होंगे साइड का स्केयर एक होंगे 1/2 गुणा डायगनल का स्केयर ठीक है। तो 4a स्केयर कट्टिया गया 2 ये कट्टिया गया तो आंसर की आ गया तो √3/2 आ गया। स्केयर सर्कल सॉरी ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन इक्वलेटर ट्रायंगल ये अंदर है ध्यान से ट्रायंगल ये अंदर कहता एक सर्कल है बिल्कुल साइड कहता 12 सेंटीमीटर है इक्वलेटेड है तो फिर तिने बराबर है 12 12 12 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्कल विद इन द ट्रायंगल सर्कल के आउटसाइड तो ट्रायंगल के यानी आ पोर्शन है जोड़ा एरिया कढ़ना तो पूरी ट्रायंगल के एरिए चों
ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ √3/2 ਗੁਣਾ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਤੇ ਗੁਣਾ 1/3। ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ 1/3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ 1/3 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 2 × 6 = 12, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹਾਈਟ ਹੈ 2√3 ਆ ਗਈ। ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2√3 ਆ ਗਈ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਜੇਕਰ 2√3 ਯਾਨੀ ਰੇਡੀਅਸ 2√3 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਈ ਗੁਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ 2√3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 2 ਦੂਣੀ 4√3 ਦਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ 12 ਪਾਈ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। 12 ਪਾਈ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ 12 ਪਾਈ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ √3/4 ਗੁਣਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ 12 × 12, 4 × 3 = 12, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36√3 ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 36√3 ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 12 ਪਾਈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਤਾ 36√3 - 12 ਪਾਈ, ਤਾਂ 12 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। 12 ਕਾਮਨ ਕੱਢੇ ਤਾਂ 3 ਪਾਈ 3√3, 12 3 36, 3√3 ਆ ਗਿਆ, -3 ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ, 12 1 12 -ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ, 12 1 12 ਤੇ -ਪਾਈ आ गया। ठीक है, सो 12 3 36, 3√3 - पाई आ गया। अब समझ में आया, 3√3 - पाई आ गया भाई। ठीक हो गया या नहीं, ठीक है, ओ ले क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है भाई, सो एक क्वेश्चन सौखे है या औखे है ये तुसी हुण डिसाइड करना, क्योंकि मैनू तो सौखे लगणगे। ठीक है, सो बाकी ये क्वेश्चन आए हुए ने, एक्सपैक्टेड क्वेश्चन मैं नाल करवा भी दिते, तो इन्होंने क्वेश्चनों च आउणगे जिन्ने मेरे मैथ के सैशन लगे हुए, चाहे पटवारी वास्ते चाहे एक्साइज वास्ते, प्लीज़ उन्होंने देखो, क्वेश्चन उन्होंने तो बाहर नहीं आऊगा। तो बाकी मैं हुण भी डेली ला दिया करूँगा, मैनू कोई चक्कर नहीं, मैथ कदे खत्म नहीं हो सकता, पर जिन्ना टाइम तुसीं उहनूं कंप्लीट नहीं करते, उन्ना टाइम कंप्लीट करोगे तो फिर ही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाबा मेहर करे, चढ़दी कला। चलो इस तरीके पढ़ते रहो, तो आप होर नवीं वीडियो नाल मिलते रहेंगे। चैनल को सबसक्राइब कर लो, तो बाकी एप्लीकेशन पर जरूर जाना, उत्थे तुहानूं बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।